we saw a little shift from glass boxes anywhere, somehow some building is constructed, to relevant and mindful uses of materials. In that segment, aluminum composite panel is a very, very versatile, easy to use material, which is there in India since long, since very, very long. People have been using, but the Indian aluminum composite panel industry has made it a very, very easily available, easily fixable, and very versatile material, because it was not only in facade, it went into interiors, it went into signages, it went into POP and other sectors. That is how, in this webinar, we thought, why not to bring aluminum composite panel people and experts from architecture community, facade community, and talk about the relevance post-COVID. We all know COVID 2019 or COVID, many people call it COVID-19 or government call it COVID-19. COVID is a pandemic. It is not leaving any chance unturned to destroy the humanity. It is testing our capabilities. It has already tested developed nation capabilities, and everybody is almost on its knees. Facade materials, architecture community, builder community, they are looking at the sky without any clarity. Nobody knows what is going to happen. In this process, in India, the contribution of building material construction sector to GDP is very, very high. When we talk about facade, we also address a certain point of concern happening in that scenario. First of all, my first question will go to Pawanji from Alstone Panels, and Pawanji, welcome on board. Pawanji, क्रिस में ये बताइए कि how's the market scenario right now? Market है कैसा चल रहा है? प्रगत जी, इस सवाल का जवाब तीन पहलू पे देना पड़ेगा। पहला सवाल है कि लॉकडाउन से पहला कैसा मार्केट था? लॉकडाउन में तो कुछ है ही नहीं, तो लॉकडाउन के बाद कैसा मार्केट होगा? लॉकडाउन से पहले थोड़ा सा मार्केट स्लो था ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बड़ा स्मूथ चल रहा था। ऑलरेडी हम लोग 70% पर ऑपरेट कर रहे थे और सोच रहे थे कि ये अब मार्केट इंप्रूव होगा, और लास्ट के 1-2 महीनों में लगा था कि शायद मार्केट इंप्रूव हो गया है, बट वापस ये लॉकडाउन होने से स्थिति एकदम जीरो पे आ गई है, पूरा सिस्टम पैरालाइज हो गया है। इसके बाद क्या देखते हैं सर, कितना नीचे आ जाएगा? मतलब जब मार्केट खुलेगा, एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टिंग कि जुलाई में, जून में खुलेगा, क्या देखते हैं कितना असर पड़ेगा इस पे? देखिए, अभी जो खुलने की स्थिति है, अभी खुलने को अगर हम बोलेंगे कि सरकार ने लॉकडाउन खोल दिया है, वो खोलना नहीं है। खोलना वो बोला जाएगा जब हम सारी चीजें स्मूथली आगे बढ़ा सकेंगे। बट अभी अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार मान लीजिए 30 मई को लॉकडाउन ओपन कर देती है, बट पूरा सिस्टम ओपन होने में इट विल टेक अनदर 3 more months। जब हम कहेंगे हाँ भाई अब हम 100% ऑपरेट कर रहे हैं, तो अगर आप उसकी बात करें तो समझ लीजिए जून, जुलाई, अगस्त, तो अगस्त में जाके हमारी लाइफ 100% नॉर्मल हो जाएगी, जब हम फुल फ्लेज 100% ताकत लगाकर काम कर रहे होंगे। राइट। प्रकाश जी, आपके हिसाब से क्या है अभी बाजार में? आपके पास कहीं से कोई भूले बिसरे डिमांड आती है क्या? किसी स्टेट से आ रही है अभी भी, यानी मटेरियल मांगा जा रहा है आपसे? मटेरियल मांगा जा रहा है, जैसे कि अभी जो ये हॉस्पिटल के लिए मांगा जा रहा है, या कोविड में जो सैनिटाइजिंग बूथ बन रहे हैं उसके लिए मांगा जा रहा है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए मांगा जा रहा है फिलहाल राइट नाउ। नॉर्दर्न गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, राइट। Architect Sutaria ji, I wish to see your face if it is possible. Mr. Prashant Sutaria ji, Anupam Mittal ji, yeah, how is the scenario at architecture community? You are the bridge, the whole entire architecture and designer community is the bridge between the consumer and the material supplier. As a bridge, as a specifier, how do you see things moving onwards from here? We all know that there is a slowdown, there is a risk coming up, there is a bad time coming up. How do you see it is going to happen from here? आपका मैसेज क्या है? Pragat ji, first of all, thank you for inviting me in this webinar. And this is a very different subject altogether, whatever we are discussing in other forums. अभी मंजू ने बोला था कि कुछ लोग चाहते हैं कि हिंदी में बात करें, तो मैं कोशिश शुरुआत करता हूँ हिंदी में बोलने की, और बाकी सबकी चॉइस है दूसरी भाषा में बोलना चाहें। सबसे पहले मुझे लगता है कि इस लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लॉकडाउन ने सबकी उम्मीदों को बहुत कम कर दिया है। ये नेगेटिव शब्द नहीं है, इसको एक्सपेक्टेशंस को कम करने को नेगेटिव मत लीजिएगा। एक्सपेक्टेशंस मतलब कि हम जब
आज जिस समय सबको सब खाना पीना और सोना और आराम करना के बीच में अपने बिजनेसेस की चिंता हो रही है, उस समय जब हम इस कोविड इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, जिसमें भी मुझे लगता है 0 से 100% में 2 से 6 महीने लगेंगे, मेरा ऐसा विचार है 100% बिजनेस मॉडल पे आने में। लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत कम हो गई हैं। लोगों इन द सेंस, अगर मैं एज एन आर्किटेक्ट अपने क्लाइंट सेवा के बारे में बात करता हूँ, एक्सपेक्टेशंस क्या कम हो गई हैं कि अब जब हम बिल्डिंग बनाएंगे या हमारा कोई क्लाइंट हमसे कहेगा कि हाँ हमारी ये बिल्डिंग आप आगे बढ़ाइए, इसको शुरू करिए, तो उसकी ये एक्सपेक्टेशन है कि एक वर्केबल बने, सबसे पहले फंक्शनल बिल्डिंग बने, उसका जो डेकोरेटिव पार्ट है, उसका जो एम्बियंस पार्ट है, उसका जो विजुअल पार्ट है, दैट इज बीन गेटिंग इन अ लोअर फॉर्मेट। अब क्योंकि ये एसीपी इंडस्ट्री के ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, तो उसके लिए उनके लिए मेरे तरफ से 2 मैसेज हैं। एक मैसेज ये है कि आप आज के ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा उसके लिए जो वैराइटीज आप बनाते थे या बहुत ज़्यादा नए जो प्रोडक्ट लाते हैं, उसकी जगह पे आप इकोनॉमिकल, फीजिबल, फंक्शनल और लार्जर वॉल्यूम पे काम करने की कोशिश करिए। मुझे लगता है कि जो पिछले दिनों होड़ लगी हुई थी, जो भी एसीपी कंपनीज के लोग हमसे आके मिलते थे कि सर देखिए हमने अब गोल्ड में ले आए, डायमंड ले आए और दिस सर्फेसेस एंड दैट सर्फेसेस, it was something which was a kind of race. This race is settling down. So यानी लुभावनी डिजाइनों को कम करना होगा इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए और ईज ऑफ फिक्सिंग के लिए। यस, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये नहीं कि बिजनेस मॉडल, उसका रीजन है एक्सपेक्टेशन। आज की तारीख में मेरी एक्सपेक्टेशन ये होगी, जब मैं बाहर निकलूंगा तो मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि मुझको सबसे पहले मेडिकल सपोर्ट, पहले मेरे को मेरा फूड सपोर्ट, मील सपोर्ट, एंड दैट इज एनफ हैप्पीनेस फॉर मी राइट नाउ। मेरी खुशी आज की तारीख में उतनी चीजों से गवर्न है, और ये छोटा लॉकडाउन नहीं है, ये 44 दिन 45 दिन इज अ लॉन्ग पीरियड व्हिच इज गोइंग टू अफेक्ट आवर एक्सपेक्टेशंस फर्स्ट, देन द बिजनेस विल कम। ओके, आपका कहना है कि ये छोटा लॉकडाउन नहीं है, बहुत लंबा समय लगेगा उभरने में। राजेश जी, यूरोबॉन्ड मुंबई, मोस्ट वेलकम ऑन द पैनल, and thank you Anupam Mittal ji for putting your voice. Anupam Mittal ji, Arinam Consulting Lucknow se, he has completed over 500 projects and going on. Mr. Prashant Sutaria ji, I would love to see you now, and on the same topic I would like to hear from you that what is going to happen. Yes, Pragat ji, lovely to be on this panel pan India with different type of people with different ideas. मुझे लगता है कि हम लोग अभी जो देख रहे हैं, वी आर लुकिंग, हम लोग पूरे सीन को एक लेंस के थ्रू देख रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग लॉकडाउन में हैं। अगर हम लोग इंडियन साइकोलॉजी को स्टडी करें तो इंडियन जो है बहुत जल्दी चीजों को भूल भी जाते हैं। सो मेरा पर्सनल मानना ये है कि जैसे ही इसकी मेडिसिन अगर जल्दी आ जाएगी तो ये पूरा का पूरा जो माहौल बना हुआ है अभी जो हम घर में, जैसे आई अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर अनुपम जी स्पोक अबाउट द मिनिमाइजेशन ऑफ द एक्सपेक्टेशन, बट आई एम गेटिंग अ वेरी डिफरेंट फीडबैक फ्रॉम माय क्लाइंट। सो माय क्लाइंट जिनके प्रोजेक्ट चल रहे थे, जो अटके हुए हैं, अभी वो एकदम ही बिल्कुल बेसब्री से उसको शुरू करना चाह रहे हैं कि अब कौन सा मटेरियल मिलेगा, हाउ सून कैन वी फिनिश इट। एक हमारा प्रोजेक्ट मुंबई में है, तो उसके लिए अभी एक्चुअली मीटिंग था, हमने उसको पोस्टपोन किया बिकॉज दिस वाज देयर। सो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ प्रेशर्स व्हिच आर कमिंग फॉर इवन न्यूअर प्रोजेक्ट्स एट लीस्ट इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड यस आई एग्री दैट थोड़ा सा इकोनॉमिक इम्पैक्ट आया है, एंड इट विल मे बी दिस 2020 पूरा ऐसे ही जाएगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रोलिंग, cash fund flow and economization of things, but I think we will bounce back, and hopefully I see a very positive future for all of us as an industry. Thank you प्रशांत जी। मुझे लगता है कि आजकल हम सभी मेंस के बाल बहुत बड़े हुए हैं और बाल काटने वाला कोई नहीं मिल रहा है, और इसीलिए शायद नहीं आ रहे हमारे सामने, लेकिन हमारी ऑडियंस आपको देखना चाहती है। अगर आप somehow possible हो, अगली बार जरूर आइएगा, यानी 10 मिनट बाद। नरेश जी, वेलकम फ्रॉम एलेक्स पैनल। ही इज बेस्ड इन यमुनानगर, ही हैज अ फैक्ट्री इन देहरादून, ही इज इन दिस इंडस्ट्री सिंस लास्ट 18 इयर्स। सबसे पहला सवाल मुझे
नरेश जी से पूछना था कि जी सर। नरेश जी नॉर्थ बेस्ड, नरेश जी यस आपको सर, हाँ सुन रहा हूँ सर। नरेश जी आप Thank- नॉर्थ बेस्ड काफी मजबूती से काफी समय से खड़े हैं, और हम ये पूछना चाहते हैं कि लास्ट 1 महीने में तो निगेटिविटी आई है, क्या पेमेंट्स रिसीव हुई हैं, क्या लोग मटेरियल की डिमांड कर रहे हैं, और उस बेस पर अगले कुछ दिनों में क्या लगता है कैसा रहेगा? थैंक यू प्रशांत जी फॉर बीइंग लाइव। I'm sorry, Internet- but I was live only. I don't know why you could not see me. My camera was on. अच्छा, आप Yeah, sorry. इवेंट शायद कनेक्शन का इशू है। नरेश जी बताइए। हेलो, थैंक यू प्रगति जी फॉर ज्वाइनिंग मी। सर ऐसा है, अभी कुछ ऐसा नहीं, पेमेंट बिल्कुल आनी बंद हो गई है, काफी पार्टीज कुछ पेमेंट आ भी रहा है। ऐसा रोज डेली का जैसे कोई 5-7 लाख डेली आ ही रहा है, ऐसा नहीं है पेमेंट बिल्कुल बंद है। जो अच्छी पार्टीज है वो पेमेंट दे रही है अभी, बट डिमांड की अभी डिमांड वगैरह कुछ नहीं आ रही मार्केट के अंदर। पर होप है ये डिमांड आगे कम रहेगी, पर ऐसा नहीं बिल्कुल खत्म हो जाएगी, डिमांड आएगी। जैसे हमारा अभी मैं बता रहा हूँ, हमारा उसके साथ बता रहा हूँ, माइंस का काम भी है। अभी जैसे माइंस 3-4 दिन से खुली है, तो माइंस की बहुत ज्यादा डिमांड है, ऐसी जैसे पहले रूटीन में आती थी ऐसी चल रहा है वो। यू मीन टू से कि प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं, कोई लॉकडाउन का इंपैक्ट आपकी तरफ दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं सर, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, प्रकाश जी ने भी सिमिलर बात कही, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए। राजेश जी, यूरोबॉन्ड से यू सप्लाई एंड यू आर वेरी स्ट्रांग इन वेस्ट एंड साउथ रीजन्स. How do you see market there? How is market response there? How is the payment scenario there in last 1 month or next upcoming 1 month? How it will be? पहले तो नमस्कार सबको। बेसिकली साउथ का मार्केट काफी स्ट्रांग है। आज के दिन में टोटल लॉकडाउन है वहाँ पे। पेमेंट्स तो नॉर्मली जो आनी चाहिए, हमारे वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर बहुत स्ट्रांग है, तो डिस्ट्रीब्यूटरों के प्रॉब्लम का पेमेंट का कोई प्रॉब्लम है नहीं। किसी लिए अटका हुआ है कि वो लोग के पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है और ऑफिस जाके वो लोग खोल नहीं सकते, तो उनका जवाब ये है कि भी जैसे ही ऑफिस खुलेगा वी विल ट्रांसफर द मनी। तो जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्डर का क्या वहाँ पे कुछ ऑर्डर्स आ रहे हैं जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के, उधर आपकी तरफ भी आ रहे हैं ऑर्डर्स, कोई डिमांड है? नहीं, अभी इंक्वायरी 1-2 दिन से चालू हुआ है, ऑर्डर्स अभी आना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ऑर्डर्स भी आने शुरू हो जाएंगे। इस पूरे पैनल में 2 चीजें सामने आई, एक डिमांड स्लो रहेगी, दूसरा थोड़ी थोड़ी डिमांड आ रही है लार्जली गवर्नमेंट सेक्टर से, तीसरा अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर स्ट्रांग है, पार्टी अच्छी है, तो थोड़ी बहुत ही सही पेमेंट भी आ रही है, चौथा आर्किटेक्ट प्रशांत सुतारिया जी फ्रॉम PSA बॉम्बे, वेरी रेप्यूटेड आर्किटेक्ट्स, do a lot of projects, housing projects, hospitality, hotels, healthcare, everywhere he has done a lot of things. He shares that his clients, उनके जो क्लाइंट है वो इतने ढीले नहीं पड़े, वो उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हमें माल चाहिए, हम इसको रिव्यू करते हैं, लेकिन साथ ही उनका एक सजेशन है कि इकोनॉमी पर ध्यान देना होगा, वक्त की जरूरत है। और अनुपम मित्तल जी लखनऊ से, उन्होंने ये कहा कि कम करें, वैरायटीज को कम करें, बहुत महंगा सोना चांदी या बहुत महंगे आइटम्स की वो आने वाले समय में रुझान कम देखते हैं, वो चाहते हैं कि इकोनॉमी और एफिशिएंसी पर ज्यादा जोर दिया जाए। मैं वापस आना चाहूंगा अशोक कुमार भैया जी, अलू डेकोर के मैनेजिंग डायरेक्टर। वेलकम अशोक जी, आपका क्या कहना है, क्या लगता है आगे डिमांड कैसी रहेगी? पास्ट का तो सबने बता दिया, आप आगे क्या देखते हैं? First of all, thank you to you for organizing this web seminar, and good afternoon to all panelists and the viewers. डिमांड के बारे में जी, डिमांड स्लो रहेगी, टेपिड भी रहेगी और अनसर्टेन रहेगी। अनसर्टेन क्यों रहेगी? तब तक वैक्सीन नहीं निकल जाता है और मासेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता है, किसी समय भी रिकूप होने का चांस रहेगा, और वापस रिकूप होने से वी कैन वापस एक ब्रेक आ सकता है। इसीलिए अनलेस द वैक्सीन एंड इज डेवलप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन masses, it will always, the uncertainty will remain in the whole ecosystem. And जो अभी पेंडिंग डिमांड्स है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की या हेल्थ सेक्टर में जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं उनकी रहेगी, बट अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहेगी। और ये अनसर्टेनिटी जब तक वैक्सीन नहीं आएगा और जब तक हमारा इकोसिस्टम पूरा इम्प्रूव नहीं होगा, तो बहुत बड़ी डिमांड मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ।
तो क्या डिमांड आप 50%, 40% देखते हैं अक्टूबर तक? आना वापसी देख रहे हैं 40%, 30%? नहीं, क्या 30%, 40%, 50% डिमांड तो रहे, उससे तो वो तो फिर भी आधी हो गई ना, डिमांड टेपिड हो गई। पवन जी, आपको क्या लगता है ये डिमांड कितने % रह जाएगी अक्टूबर तक? जी, देखिए, अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि लाइफ ही सर्टेन नहीं है अभी तो मुझे मालूम है कि हम ऑफिस कब जाएंगे, वहां पर हमारा स्टाफ आएगा नहीं आएगा, हम उससे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो मार्केट आएगा नहीं आएगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो यानी आपके पास डेफिनेटिव आंसर नहीं है? नहीं, आंसर है, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं है, बट अभी जो समझ में कर देंगे हम 50% कर लेंगे या ज्यादा कर देंगे, अभी ऐसे एक्सपेक्टेशन में नहीं कर रहा। ठीक है, कुछ अनसर्टन सेल्स आएंगी, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जो अटके हुए होंगे, वो डिमांड क्रिएट कर लेंगे, बट फैक्ट्री तो क्या है 24 घंटे चलती है, 300 दिन चलती है, तो उसको उसके अकॉर्डिंगली सेल्स नहीं आ सकती। अभी अगर 25% भी आ जाए हमारी अगले 6 महीने में, तो वी आर वेरी हैप्पी। तो 50%, 25%, और हमारे एक व्यूअर पूछ रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में ही सारी आशा है तो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स का क्या, उनसे क्या उम्मीद रखें? मैं इसी क्वेश्चन के साथ मिस्टर अजय नाहर जी, ही इज फ्रॉम बिल्डर साइड, he has consumed a lot of aluminum composite material in his projects. He is also a practicing architect. He has done his masters in this. He is also delivering lectures to various forums, and at the same time his company Nahar Group is into hospitals, buildings in Bombay, and many other projects which he will temporarily himself. But क्या रिटेल में हम डिमांड एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नाहर जी, आपका क्या व्यू है? और स्ट्रेट, और आपका आंसर बहुत पॉइंटेड होगा क्योंकि आप बिल्डर कम्युनिटी से हैं। आपके सामने 2-4 और टफ सवाल आने वाले, तैयार रहिएगा जी। Sure. Thank you, Pragat, and welcome all the panelists. It's nice to see all of you all. आप सबको तो हमेशा मटेरियल लेते हैं, लेकिन कभी आपको देखने का मौका नहीं मिलता है, तो अच्छा मौका मिला है आपको मिलने का। एटलीस्ट ये लॉकडाउन में कुछ तो फायदा हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक थोड़ा मटेरियल हमारे लिए भी, बिल्डर्स के लिए बचा रखना, सारे गवर्नमेंट को मत दे देना आप लोग, तो एटलीस्ट हमारे पास भी आपसे मटेरियल की थोड़ी उम्मीद रहेगी। ऑन दिस नोट आई थिंक थोड़ा मैं पॉजिटिव रहना चाहूंगा, बिकॉज हम सारे बिल्डर फ्रेटर्निटी को अभी सिर्फ इंतजार है कि ये लॉकडाउन कब खत्म होगा, जैसे कि आप सबको है। इंडियंस एज अ कम्युनिटी, एज इंडियंस, हम लोग हमेशा काम करने वाले लोग हैं, हम घर पे बैठने वाले लोग नहीं है। ओवरऑल सुबह 9 बजे बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट खा के हम ऑफिस पे निकलते हैं और दिन भर काम करते हैं। तो ये कम्युनिटी हमेशा, जितने भी लोग हैं इंडियन, सबको काम करना है और सबको अपने प्रोजेक्ट्स खत्म करना है। आज बिल्डर्स का पैसा है या नहीं है, वो लोग अपना प्रोजेक्ट जरूर खत्म करते हैं, फिर भले कोई बैंकरप्ट हो जाए नहीं हो जाए, लेकिन प्रोजेक्ट जरूर कम। तो आपके लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, मैं इस बात से और बहुत सारी ऑडियंस सहमत नहीं है। बिल्डर्स अपना प्रोजेक्ट टाइम से खत्म करते हैं या डिलीवरी करते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारे दिल्ली, नोएडा, एनसीआर में तो लाइन लगी हुई है बंद प्रोजेक्ट्स की और कोई माई बाप नहीं है। आई डिसएग्री हियर। माय मेन क्वेश्चन इज कि क्या जो बचे हुए हैं और अच्छे वाले हैं वो चालू रखेंगे कि वो, उन्होंने तो अकाउंट भी फ्रीज किए हुए हैं। कई लोगों से मैं सुनने में आ रहा है कि दे आर नॉट रिलीजिंग पेमेंट्स, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? सी, अगर इट डिपेंड्स प्रोजेक्ट कौन से स्टेज पे है। अगर आपका प्रोजेक्ट एकदम फंसा हुआ है तो आई मीन इट्स नॉट अबाउट कि लॉकडाउन के वजह से है कि कोरोना वायरस के वजह से लॉकडाउन है। वो शुरू से ही प्रोजेक्ट फंसा हुआ होगा, बहुत सारे दूसरे वजह हो सकते हैं, प्रोजेक्ट के अप्रूवल्स में भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो ऑलवेज इट्स नॉट के फंड के वजह से है। प्रोजेक्ट के अंदर हमेशा फंड के वजह से प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रोजेक्ट्स में दूसरे चीज भी होते हैं। कभी कभी पैसा भी, जैसे आज कितना भी पैसा हो लेकिन आदमी तो भी घर पे बैठा है, राइट? सो समटाइम्स अगर फंड भी होगा तो भी डिजाइन नहीं होता, चेंज होता है, चेंज आकर देयर इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। सो हर एक के ऊपर जरूर कह सकता हूँ कि जो भी प्रोजेक्ट्स नियर टू कंप्लीशन है या प्रॉमिसिंग, आई मीन व्हाट इज द सेल्स सिनेरियो? सेल्स तो नहीं है, लोग घर नहीं खरीदेंगे तुरंत। जो प्रोजेक्ट, जहां पर अगर मैं फसाड मटेरियल की बात करूं तो 70% 60% बिल्डिंग कंप्लीट होती है, उसके बाद फसाड मटेरियल की एंट्री होती है, वो थोड़ा बहुत लगना शुरू होता है, चाहे वो ग्लास हो चाहे वो एसीपी हो। आज बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इस स्टेज पर हैं जहां से वो फसाड मटेरियल की सोच सके। फसाड मटेरियल तो दूर की बात है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अब आगे का पैसा नहीं है। क्योंकि आई थिंक इम्पैक्ट के पहले मैं बताना चाहूंगा कि बहुत लोगों का मैनेजमेंट पुअर है।
मैनेजमेंट मींस एज इन आज आप लोग बिल्डर्स है या जो भी है, लोग आज घर पे बैठ के ज्यादा फोकस हो गए हैं, ज्यादा चीज देखना चालू हो गया है, ज्यादा विजन अपना क्रिएट हो गया है, बहुत चीज को अलग से देखना शुरू हो गया है, बहुत लोगों के दूसरे बिजनेसेस देखना शुरू हो गया है। जो आदमी पहले 2 पेपर पढ़ता था, आज ई पेपर पे 25 पेपर पढ़ना चालू कर लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स भी आ रहा है हमारे पास आजकल, ऐसा सिनेरियो हो गया है। तो जितना हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं और जितना सिस्टम से जुड़ते हैं, उतना एक दूसरे को समझ के सीखते हैं। और ऑलरेडी हम एज ए इंडिविजुअल, पूरा वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया, ने बाकी चीज सीखना शुरू कर लिया है। अगर हम वापस हम तैयार हो गए, मतलब ये बोलते हैं ना, वॉर के लिए हम तैयार हो गए। अभी तक वॉर के लिए हम तैयार नहीं थे। अभी तक स्वच्छ भारत अभियान नहीं हुआ था, कचरा साफ नहीं हुआ था, लेकिन अभी सारा रास्ता साफ हो गया ऑटोमेटिकली। अभी हम लोग तैयार हो गए हैं दैट वी कैन गो आउट एंड शो टू द वर्ल्ड व्हाट इंडिया एंड व्हाट इंडियंस इकोनॉमी इज। थोड़ा गवर्नमेंट से हेल्प या स्टिमुलस पैकेज या रिलैक्सेशन, आप जो भी कहो, हर सेक्टर में अगर आ जाता है किसी भी तरह से, या कोई भी तरह से लिक्विडिटी या कैश पंप इन हो जाता है हमारे इकोनॉमी में, ऑलवेज वी कैन नॉट ब्लेम के गवर्नमेंट हमारे लिए नहीं कर रहा है, बट जैसे भी होगा वो, then there is a chance of revival. So I don't think we should lose hope नहीं lose करना चाहिए। तो आप बोलते हैं कि ये एक तो कचरा साफ हो गया है। कचरा साफ होने का मतलब 2 होता है। एक कि हमारे इंडिया का वीक पोर्शन जो बाजार खराब करता है वो साफ हो गया है। कचरा साफ होने का मतलब होता है दूसरा, एक कि हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो हम आगे तैयार हैं आगे जाने के लिए, और दुनिया को किसी और की वीकनेस दिखाई दे गई है। कौन सा वाला मतलब था आपका, पहला या दूसरा? मैंने मतलब तो नॉर्मली बोला था, लेकिन आपने 2-3 मतलब निकाल दिया है, तो विच इज गुड, बिकॉज आखिर में जो भी चीज होता है वो हर चीज में रेलेवेंट होता है। सो ऑफ कोर्स जो गुड प्लेयर्स है, जो अच्छे प्लेयर्स है, और जो डेडिकेटेड प्लेयर्स है, जो इनोवेटिव प्लेयर्स है, वो हमेशा मार्केट में रहेंगे। जैसे कि आप एसीपी का आज फसाड का टॉपिक है, तो मैं एसीपी एज अ मटेरियल के बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगा। उस पे आऊंगा, एसीपी एज अ मटेरियल पे आऊंगा। मैं इसके पहले इसी टॉपिक पे प्रशांत सुतारिया जी से पूछूंगा। सर, आप बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स करते हैं, क्या लिक्विडिटी इश्यूज की जरा भी आहट दिखाई दे रही है? देखिए, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिसेंट टाइम में हो नहीं रहा, तो डेफिनेटली लिक्विडिटी जो है इज डेफिनेटली इशू। जो ये महीना, जो अप्रैल का महीना रहा, डेफिनेटली लिक्विडिटी इशू है, और हम लोग उसको 2 महीना और रहेगा, ये दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, कि 2 महीने तक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है विल टेक टाइम। ओपन होने के बाद में भी पैसे लोग देना चाहेंगे, तो उनके पास में भी जो पैसे है वो दे देंगे, तो दूसरा पैसा नहीं आएगा, आगे कैसे काम होगा? तो हम जिसको चक्का जाम बोलता है वो है, फाइनेंशियल मार्केट में है, सो उसमें कोई सवाल ही नहीं है। इट्स गोइंग टू बी देयर। यानी पैसे की तकलीफ रहने वाली है, ये इनएविटेबल है, क्योंकि पैसा आया ही नहीं। लेकिन इसको सुधरता हुआ सर आप कब देख रहे हैं? क्योंकि आपकी दूसरी साइड की कम्युनिटी से भी आपकी एक ट्रांसपेरेंट बातचीत होती होगी। करेक्ट। सो एज फार एज अगर हम देखें, एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और प्राइवेट डेवलपर बेस्ड प्रोजेक्ट्स। तो आई थिंक प्राइवेट डेवलपर, जैसे अजय जी ने कहा ना, तो प्राइवेट डेवलपर विल स्टार्ट रोलिंग द वर्क, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो उसका तो पूरा चक्का जाम हो जाएगा। बिकॉज अल्टीमेटली द एंटायर रियल एस्टेट गेम इज ऑन दी फंड फ्लो एंड दी मूवमेंट ऑफ फंड्स। आप बंद करके प्रोजेक्ट नहीं बैठ सकते हो। सो डेफिनेटली ऑल आवर डेवलपर्स आर इन द पाइपलाइन to start projects which are stopped at the moment, or they are even thinking of launching newer projects but may not be। आपका सिग्नल बहुत वीक है, हम सुन नहीं पा रहे। आपका सर सिग्नल बहुत वीक है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिग्नल इशू है। ओके, सो मैं आपको ये कह रहा था कि डेवलपर्स आर ट्राइंग टू रीस्टार्ट द प्रोजेक्ट जो खड़े हो गए थे, क्योंकि जितने रुक जाएंगे उतनी ज्यादा तकलीफें आएगी आगे, तो उनको मजबूरी भी है एक तरह से वो प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने की। नंबर 1, मे बी देयर विल बी कॉस्ट कटिंग इन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, वो डिस्कशंस भी हो रहे हैं कि हाउ टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट। सो ऑन दैट साइड, यस, कॉस्ट कटिंग विल हैपन on existing projects, but at the same time newer projects are also being talked about कि हमको कोई नए प्रोजेक्ट शुरू करने हैं। So supply के लिए डिमांड जरूर आएगी, नंबर 1। नंबर 2, आज अगर मुझे मटेरियल चाहिए तो बिकॉज फैक्ट्री सब बंद पड़ी है, तो मुझे जो मटेरियल चाहिए वो मिल नहीं रहा है। जैसे रायपुर में मुझे कोई मटेरियल चाहिए
वो दुकान वाला ऑर्डर लेने को तैयार नहीं, क्योंकि उसके पास में उसकी सप्लाई चेन अभी बनी हुई नहीं है, तो वो ऑर्डर कैसे लेगा। सो ये पूरा जो माहौल है वो 2-3 महीने चलने वाला है। जब तक पूरे बाउंड्रीज नहीं खुलेंगे, फैक्ट्रीज नहीं ओपन होंगे, सप्लाई शुरू नहीं होगा पूरे इंडिया में, तो हम सबके पास में पेमेंट आना चाहेंगे, हम लोग लेना चाहेंगे तो भी नहीं ले। तो अच्छी बात यहाँ पर ये है कि एक होप है, जैसा अजय नाहर जी ने कहा, बिल्डर है जो बॉम्बे से, क्योंकि बाद में जो लोग ज्वाइन हुए उनके लिए बता देता हूँ, आर्किटेक्ट सुतारिया जी बॉम्बे से है। इन दोनों लोगों ने एक चीज कही कि प्रोजेक्ट्स हैं, चलेंगे, और जो जिनके पास हालात नहीं है उनके पास आगे चलने के अलावा ऑप्शन बचता भी नहीं है, यानी देर से ही सही डिमांड आएगी जरूर। अब मैं एक सवाल बड़ी जल्दी से पवन गर्ग जी से पूछना चाहूंगा कि सर पेमेंट्स कुछ रिसीव हुई है कि नहीं? आप तो गवर्नमेंट सप्लाईज में भी हैं और अलूट के और भी कुछ इस तरह से मैं आपके पास भी इस सवाल को लेकर आऊंगा और प्रकाश जी के पास भी आऊंगा, क्योंकि प्रकाश जी इंडिया में रिटेल को बहुत वाइडली कवर करते हैं। पवन जी, पेमेंट्स की क्या सिनेरियो है सर? गवर्नमेंट का सवाल है, गवर्नमेंट ने कुछ पेमेंट रिलीज की है, कुछ पेमेंट्स हमारे अकाउंट्स में आई हैं 2-3 दिन पहले, बट जहाँ तक सवाल है फैब्रिकेटर लॉबी का, वहाँ से पेमेंट अभी नहीं आ रही है। जहाँ तक सवाल है कुछ आपके डेडिकेटेड डीलर्स हैं, वहाँ से 1 लाख 2 लाख 3 लाख की पेमेंट्स कुछ छोटी छोटी आ रही हैं, बट वो अमाउंट बहुत छोटा है। उसको अगर हम सबको टोटल भी करेंगे तो अमाउंट बहुत बड़ा नहीं निकलेगा। Why I am asking the payment question is there are so many fabricators and stockists here who are posting also messages and sending me WhatsApp कि सर आप पेमेंट का क्यों पूछ रहे हो, दुखती रग पे हाथ रख रहे हो। लेकिन एक्चुअली मैं पेमेंट पूछने से ये आशा दिलाना चाहता हूं आप सभी स्टॉकिस्ट भाइयों को, ट्रेडर भाइयों को, कि पेमेंट रिलीज हो रही है यानी आप धंधे में फिर भी मजबूती से बने हुए हो। अगर पेमेंट नहीं आ रही है यानी मैं इसका ये मतलब जरूर निकालता हूं कि आगे आपको ऑर्डर देने और मटेरियल लेने में तकलीफ आएगी। प्रकाश जी, आप मेरी इस बात से कितना सहमत है? प्रकाश जी वीवा एसीपी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। पिछले 4-5 सालों में इन्होंने काफी जगह अपने स्टॉक्स खोले हैं, डिपोज खोले हैं और इनके पास एक अच्छी कैपेसिटी है। प्रकाश जी, क्या सिनेरियो है? पेमेंट्स आएंगी तो मटेरियल जाएगा या पेमेंट्स नहीं आएंगी तो भी आप मटेरियल देंगे? आप यानी कम्युनिटी से बात है ना, रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप जी। कुछ तो कंपनी को भी फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। आप एकदम मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते कि नहीं भाई पहले आप पेमेंट भेजेंगे तो ही हम आपको मटेरियल भेजेंगे। और मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि डिस्ट्रीब्यूटर डीलर कुछ वो भी आपको पेमेंट मतलब भेजेंगे पहले, और कंपनी को फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी को भी उनको उतना ही सपोर्ट देना पड़ेगा इस सिचुएशन पे। मान लो आपका क्रेडिट लिमिट 60 डेज था या 90 डेज था, तो उसको 120 डेज पे चले जाएंगे वो लोग, बट आपको फ्लेक्सिबल तो बनना पड़ेगा थोड़ा सा। यानी अगर आप डायरेक्टली आप ये कहना चाह रहे हैं कि पेमेंट एक्सपेक्ट हम जरूर करेंगे लेकिन हम रोकेंगे नहीं, काम को आगे जारी रखेंगे, वो आपको करना ही रहेगा। अशोक जी, क्या फैक्ट्री लॉकडाउन के बाद चालू होने की स्थिति बन रही है? 3 तारीख के बाद दिखाई दे रही है कि आप फैक्ट्री चालू कर पाएंगे? आई मीन होल एसीपी इंडस्ट्री, इज एनीवन प्रिपेयरिंग टू ओपन अप द फैक्ट्री, और आप लोग अभी भी कुछ दिन बंद रखना चाह रहे हैं? मैं अशोक जी से पूछना चाहूंगा। गवर्नमेंट अलाउ किया, प्रॉब्लम क्या है, हमारा हरिद्वार रेड जोन में है, तो आपको आशा दिखाई नहीं दे रही रेड जोन में? जो वो लोग कोई जी हमारी फैक्ट्री रेड जोन में है और हरिद्वार रेड जोन में है, इसलिए मैं अपने टीम मेंबर का हेल्थ का ध्यान रखते हुए मैं अभी नहीं खोलूं। हमने अभी डिसीजन लिया, इंटरनली वी विल नॉट ओपन अनलेस। निखिल जी वर्गो से, वर्गो एसीपी निखिल अरोड़ा जी, you are going to say something that you are about to start the factory, is it? Yes. On the other side, Pragat ji, thank you so much for inviting me. So you're right. हमारा प्लान ऑलरेडी फैक्ट्री ओपन हो चुका है। इसमें ऐसा है कि हमारे पास परमिशन आ गई थी बिकॉज हम टनल में सप्लाई कर रहे थे जो डिसइंफेक्ट टनल्स होती हैं, तो उसके लिए कुछ के लिए हमने मतलब पूरा फैक्ट्री 100% ओपन नहीं है, हमने कुछ ही लेबर्स को इनवाइट किया है और कुछ ही मैनेजर्स को, और पूरा प्रिकॉशंस के साथ हम इसको रन कर रहे हैं ऑपरेशन को, जिसमें हमारे पास डिमांड कुछ आ रही है, तो उसके बेसिस पे हमें परमिशन गवर्नमेंट से लेके हमने इसको चालू किया। जैसा मित्तल जी ने कहा कि इकोनॉमी इज इम्पोर्टेंट, रिडक्शन ऑफ रेंज इज इम्पोर्टेंट। माय क्वेश्चन टू मित्तल जी इज, मित्तल जी, एल्यूमिनियम कंपोजिट मटेरियल का वाइब्रेंट यूजेस है, क्या यहाँ से आप कुछ नया स्कोप भी देखते हैं जो सिर्फ फसाड ही ना हो, या फसाड में भी कुछ नया स्कोप एल्यूमिनियम कंपोजिट मटेरियल के लिए, प्लस
आप इस मटेरियल को अदर फसाड मटेरियल के मुकाबले 10 के स्कोर पे कहाँ रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब हम लोग फसाड के बारे में बात करते हैं तो एक कैटेगरीज हैं बिल्डिंग्स की या प्रोजेक्ट्स की, जिसमें कमर्शियल, हॉस्पिटल, होटल, ऑफिस बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल, सारे टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें एसीपी यूज होता है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में ना के बराबर होता है। आप सारे एसीपी मैन्युफैक्चरर्स इस बात को एग्री करेंगे, जिसमें से सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी इंडस्ट्री डेवलप होगी और कौन सी इंडस्ट्री में इसका यूजेज आप ज्यादा कर सकते हैं, सोच सकते हैं। मुझे लगता है कि हेल्थ इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट की तरफ से। पहली बात तो गवर्नमेंट और प्राइवेट प्रोजेक्ट अलग अलग नहीं होते हैं। हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, प्राइवेट प्रोजेक्ट। एक्चुअली प्रोजेक्ट होता है, गवर्नमेंट या प्राइवेट नहीं होता। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इसी सिस्टम से पैसा आ रहा होता है, इस सिस्टम में जा रहा होता है, फ्लो का चल रहा होता है पैसे का। सो हॉस्पिटल्स पे काम बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज पे काम बढ़ेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ेंगी, जैसा कि लगता है चाइना का फैक्ट दिखता है, या हो सकता है डिफरेंट टाइप की यूनिट्स, नई चीजें शुरू हो गई बनना। बट होटल इंडस्ट्री, ऑफिस बिल्डिंग्स एंड कमर्शियल, इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। सो आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन दैट प्रोडक्ट हैज टू बी रिन्यूड और रिवाइव, और उसकी R&D जो होगी वो इस डायरेक्शन होनी चाहिए कि यूजेज कौन से ज्यादा आएंगे। ये मेरा सोचना है। यूजेज आएंगे हॉस्पिटल्स में और इंडस्ट्री बिल्डिंग्स में, कमर्शियल, होटल्स एंड ऑफिस बिल्डिंग, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम कल्चर इतना ज्यादा डेवलप हो गया है इन दिनों। इवन मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं ऑफिस के अपने साइज को छोटा करूँ। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने ऑफिस के साइज को रिड्यूस कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द काइंड ऑफ प्रोडक्ट व्हिच यू आर आस्किंग एज अ सब्जेक्ट, डेफिनेटली जब हॉस्पिटल पे इसका जोर बढ़ेगा तो पैनल इंडस्ट्रीज डेफिनेटली किसी ऐसे तरह के पैनल पे वर्कआउट कर सकती हैं जो इंटीरियर्स में, सरफेसेस में, बिकॉज टच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर दिस कोविड-19, जिसमें बहुत बड़ा एस्पेक्ट आ रहा है कि लाइक रिफ्लेक्टिव सर्फेस होनी चाहिए या सॉफ्ट सर्फेस होनी चाहिए। सो विच सर्फेस इज मोर easier to maintain in this particular situation. तो अगर एसीपी इंडस्ट्री कुछ ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर सकती है जो हॉस्पिटल के इंटीरियर एरियाज में, कॉरिडोर्स में, डायरेक्ट यूजेज में, टच जहाँ पे आपका है वहाँ पे उसका इस्तेमाल डिसइंफेक्टेंट के साथ में या किसी तरह के ट्रीटमेंट के साथ में या किसी तरह के लेयर के साथ में अगर कर सकते हैं तो I'll be the happiest person. Pawan ji, you do a lot of R&D also. I've been meeting you since last 18 years and I see you talking some new material and new product. Is it possible to create something for hospital or healthcare for ACP industry other than tunnels and other than things which are being asked for? क्या इसमें स्कोप है? यस, बिल्कुल है। जैसा अनुपम जी ने कहा कि ऐसा प्रोडक्ट अगर उनको मिलता है, इसके अंदर एक कोटिंग डेवलप करनी पड़ेगी जो एंटी बैक्टीरियल कोटिंग होगी, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है दुनिया में बट हमारी इंडस्ट्री में नहीं है। अगर वो कोटिंग हम हमारे प्रोडक्ट के साथ इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो आवर प्रोडक्ट वुड बी एंटी बैक्टीरियल। एंड इन जनरल स्पीकिंग, अगर हमारा जो एसीपी है अगर उसकी जनरल बात करते हैं तो इन जनरल भी वो एंटी फंगी है या और काफ़ी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी वो उससे बचा हुआ है। हाँ, अगर हम पर्टिकुलरली एंटी बैक्टीरियल की बात करते हैं, yes, there are coatings which are antibacterial, so which can be incorporated with our ACP, with our coatings, and the product can be made. So we expect that ACP develop something new. Nahar ji, yeah, please, Ashok ji, बताएं. In our portfolio of products, we have antimicrobial copper composite panel, and we have antibacterial ACP, and our both products are globally accepted and tested. Okay, thank you. And we have received huge demand inquiries on those. जी प्रकाश जी, आप भी कुछ कह रहे हैं? यही सेम प्रोडक्ट हम लोग ने भी लॉन्च कर चुके हैं और काफी मार्केट से इसका इंक्वायरी भी जनरेट हो रहा है और बेसिकली ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए काफी इंक्वायरी आ रही है इसकी। यानी कहने का मतलब ये है कि एसीपी इंडस्ट्री को डेवलप नहीं करना है, डेवलप करके वो तैयार बैठी है और इंक्वायरी भी रिसीव कर रही है। अच्छी बात है। मैं एक बार बोलना चाहूंगा। अनुपम जी बोलेंगे, पहले अनुपम जी बोलेंगे जी। मैं इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन चाहूंगा सबसे, क्योंकि अगर इंडस्ट्री ये कह रही है कि उनके पास ऐसा मटेरियल है, so please ensure it's a very sensitive issue because this healthcare has locked down the entire world. Just please do not introduce anything for the marketing sake. Make it absolutely tested,
practical and be very honest to this particular thing, because this is something where this can become a disaster if we use a product which is being defined and designated as a zero bacteria or whatever. So industry has to come forward. I agree with sir. Has to come forward with some specification, secured in specification, internationally accredited agency के साथ अगर कोई भी इस तरह का product launch है, तो it is very welcoming step. Mr. Nahar, I have a question for you, that as sir ने अभी कहा कि co-working spaces या offices, I mean offices will be, sizes will be coming down, हम लोग working from home करेंगे, क्या आप भी ऐसा सहमत हैं, ऐसा देखते हैं as a builder? As a builder, as a consumer, as a citizen, I think 2-3 महीना घर पे बैठने के बाद आज पहली बार फॉर्मल कपड़ा पहना है, you know, so अच्छा लग रहा है. So I don't think working from home is always something which we feel that वो एक reality है, एक challenge है हर एक sector के लिए. वर्किंग फ्रॉम होम ज्यादा पॉसिबल नहीं होगा. देयर इज अ लिमिटेशन. अभी हम जो कर रहे हैं वो एक कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि वी डोंट हैव एनी ऑप्शन के घर से काम करना है, तो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और अपने आप को जो कर रहे हैं और अपने आप को एक फील गुड फैक्टर बता रहे हैं कि आई एम वर्किंग फ्रॉम होम एंड आई एम वेरी हैप्पी और मैं बहुत खुश हूँ और मेरे को ऑफिस छुट्टा करना है या मुझे काम पे नहीं जाना है या को वर्किंग स्पेस की जरूरत नहीं है. बट जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे कोवर्किंग स्पेस भी डेवलप होगा. आज जो कोवर्किंग स्पेस है, जो हम लोग मे बी 5-7 साल पहले 10 साल पहले कैफे कॉफी डे और स्टारबक्स और आई मीन व्हाटएवर कॉफी शॉप्स था, वहां पर बैठ के लोग कंप्यूटर पे बैठ के मीटिंग कर लेते थे. उसके बाद ये कोवर्किंग स्पेस आया. पता है मे बी कोवर्किंग स्पेस के बाद भी कुछ आएगा और उसके अंदर भी कुछ डेवलप होगा. सो टेक्नोलॉजी जो स्पीड से आगे जा रहा है, you need these spaces which are more people friendly, और people friendly spaces, co-working spaces जब और innovatively develop होगा. जैसे कि आज co-working space में you have your conference room, business meetings, people are coming and working, but maybe वहाँ पर medical facility नहीं है, maybe वहाँ पर diagnostic center नहीं है कि person can get their blood test and all that. So आगे जाके maybe these spaces are more in demand where a person goes कि office में गया, नीचे गया, काम किया, blood test checkup किया, gym गया, everything, and then you are back home. Maybe if these are prototype, अगर ऐसे बहुत सारे areas में develop हो गए तो load on infrastructure भी reduce होगा, people का traveling less होगा. But yes, घर से काम करना और एक जगह पे जाके काम करना, there is a lot of difference. So I would definitely recommend कि co-working space always in the need of an hour और वो हमेशा रहेगा. We have a very interesting questions. जैसे कहा कि अनुपम मित्तल जी ने कहा कि क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज नीड ऑफ द आवर एंड देयर विल बी अ शिफ्ट फ्रॉम ऑफिस सेक्टर टू लिटिल बिट मोर टुवर्ड्स वर्किंग फ्रॉम होम. एट द सेम टाइम नाहर जी ने कहा कि इतना भी नहीं होगा, हम परेशान हैं घर में काम करके, हम सभी परेशान हैं. उन्होंने अपनी राय रखी और जैसे ही चीजें नॉर्मल होंगी लोग वापस ऑफिस में जाएंगे. इसी सवाल के साथ मैं नरेश जी के पास आना चाहूंगा. नरेश गर्ग जी और निखिल अरोड़ा जी दोनों से सवाल पूछने जा रहा हूं. साथ में राजेश जी आप भी तैयार रहिएगा कि डॉलर बढ़ के 68 से 78 हो गया या 77 हो गया. ACP इंडस्ट्री इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन चाइनीज इंपोर्ट कॉइल्स. व्हाट इज द इम्पैक्ट? प्रगट जी बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे? नरेश जी सर, ऑब्वियसली प्राइस तो बढ़ाना ही पड़ेगा. कोई सेकंड कोई ऑप्शन बचती नहीं है. हमारा काफी 90 जो कॉइल्स और सब लोग चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो रेट तो बढ़ाने के अलावा सेकंड कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं बचती. रेट तो बढ़ाना ही पड़ेगा. रेट ही बढ़ाना पड़ेगा और क्वालिटी भी जो कुछ लोग हमारे हैं वो क्वालिटी नहीं मेंटेन करे, मार्केट में क्वालिटी प्रोडक्ट ही देना पड़ेगा. निखिल जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें रेट बढ़ेगा या कंपटीशन के लिए ये नहीं बढ़ पाएगा? प्लीज डू एलेबोरेट. प्रगट जी, हम तो ये चाहेंगे कि हम अभी बेनिफिट रखें अपने डीलर्स के लिए और रेट पे ज्यादा पोषण ना करें, बट स्टिल जैसा सब करेंगे उसके साथ हम रहेंगे. प्लस पॉइंट ये है हमारे साथ कि हम एल्यूमिनियम खुद बनाते हैं, सो वी आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ एल्यूमिनियम, तो हमें इंपोर्ट पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा. हमारा इन हाउस ही प्रोडक्शन है एल्यूमिनियम का, तो उससे हमें बेनिफिट मिल सकता है. सेकंड मेरा ये था कि प्रगट जी मेरे कुछ फैक्ट एंड फिगर्स जो हमने स्टडी किए थे दैट कि इंडिया
का जो मैंने कल और परसों काफी स्टडी किया इन चीज पे, जैसे क्रिस्टल का रिपोर्ट था, IMF का रिपोर्ट था, तो काफी अच्छा लगा कि इंडिया और चाइना ही दो कंट्रीज हैं जो काफी बूस्टिंग होने वाले हैं, जिसमें IMF का डाटा ये कह रहा था कि 5.8 एक्सपेक्टेड था हमारा GDP होना, और अभी भी सारे डिजास्टर के बाद भी हमारा अभी जो नया रिवाइज्ड आया है वो 1.9 आया है। और सेम ये बाकी KPMG, क्रिस्टल, SPN ग्लोबल सबका ये डाटा है। सो वी आर वन ऑफ द लकी पीपल ऑन द प्लैनेट कि इंडिया में हमें रिकवरी काफी अच्छी और काफी जल्दी रिकवरी आ सकती है। और Q4 तक एक्सपेक्टेड है, और Q3 तक, हमारे इंडिया का Q3 होगा, उनके हिसाब से Q4, तो Q3 तक एक्सपेक्टेड है कि हम काफी अच्छा रिवाइव हो जाएंगे अगर सब सही रहा। और वर्स्ट केस सिनेरियो में भी जो उन्होंने KPMG ने रिपोर्ट निकाला, वर्स्ट केस सिनेरियो में भी हम 1.9 इवन हम अचीव करेंगे, तो हम नेगेटिव ग्रोथ में नहीं जाएंगे। वेयरएज US और बाकी यूरोपियन जोन्स -8% या -15% सबका अलग अलग है, उस हिसाब से वो माइनस में जा रहे हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर अस। और मेरे हिसाब से जो NRI हैं वो काफी करेंगे बैक टू होम और इन्वेस्ट करेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि उनको 10% के आसपास, जब 12% के आसपास उनको बेनिफिट मिलेगा इन्वेस्ट करने के लिए, सस्ता पड़ेगा इंडिया में। अब थैंक यू निखिल जी। अशोक जी, यू वांट टू ऐड समथिंग? Yeah, in worst case scenario, we can we also, our economy also go contract by 5 to 7%. I do not agree with him. 1.9 in worst case scenario we will be on the growth path of 1.9. But in worst case scenario, our economy may go down, contract by more than 5%, as per available reports. Contract means अभी पहले इकोनॉमी 5.8 थी। KPMG की रिपोर्ट का हवाला देते हुए निखिल जी ने कहा कि वो 1.9 हो जाएगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं 5 कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी 0 पे नहीं, worst case scenario they have they make 3 scenarios, KPMG also, right. One scenario they say कि अगर worst हुआ तो इंडिया की इकोनॉमी 5% से ज्यादा कंट्रैक्ट करेगी। अच्छा, if we able to contract, if अभी तक की सिचुएशन में वो 1.9 1.7 तक ग्रोथ पाथ पे है अभी तक। एक सवाल अशोक जी आपसे और है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जो हमारे यहाँ ट्रेड के डीलर लोग हैं, फैब्रिकेटर लोग हैं, इनका कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा? टू दी पॉइंट बताइए। कॉन्ट्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ इनके बिजनेस में कॉन्ट्रैक्शन कितना आएगा? देखिए, अगर मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर इकोनॉमी 1.9 ग्रो करेगी तब भी सबके बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट होगा, एटलीस्ट फॉर द ACP बिजनेस में। ACP के जितने भी फैब्रिकेटर लोग हैं, उनका जो भी बिजनेस चल रहा था वो ग्रो नहीं रहेगा, वही रहेगा। हाँ, वही का वही रहेगा या कम हो सकता है, बट बढ़ेगा नहीं इस करंट ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में। ट्रू। प्रकाश जी, आप डीलर लोगों से और स्टॉकिस्ट लोगों से काफी जुड़े रहते हैं, उनका बिजनेस डवाडोल स्थिति में है, बिल्डर लोग उनका पैसा नहीं दे रहे और फैब्रिकेटर लोग भी वो खोज नहीं पा रहे। कई सारे फैब्रिकेटर लोग यहाँ पे क्वेश्चन भी डाल रहे हैं कि हमारा क्या होगा, पहले ही डाल रहे हैं। लास्ट 10-15 दिन में हमने काफी जूम मीटिंग ली है, डीलर से भी ली है, डिस्ट्रीब्यूटर से भी ली है, हमारे एम्प्लॉय से भी ली है, कुछ फैब्रिकेटर लोग से भी ली है। काफी लोग पॉजिटिव है। मुझे इतना डरने कोई बड़ा है, हाँ इफेक्ट आएगा। रिटेल सेगमेंट जिसका मजबूत होगा उसको इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। ओनली मैं प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहा हूँ, उनको ज्यादा इफेक्ट आएगा। चाहे प्रोजेक्ट नॉर्मल प्रोजेक्ट हो गए, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो गए, बिल्डर लोग वाले प्रोजेक्ट हो गए, कोई भी प्रोजेक्ट हो गए, उससे थोड़ा इफेक्ट आएगा। बाकी जिसका रिटेल सेगमेंट ठीक है, उनका काम होएगा। प्रकाश जी, मेरा कहना है यहाँ कि ओवरऑल करंट फाइनेंशियल ईयर में हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर से कंपैरिजन में हम लोग कहाँ, माने कोई भी डीलर एसीपी बिजनेस में कैसे स्टैंड करेगा या फैब्रिकेटर कैसे स्टैंड करेगा? मैं ये बोलना चाहूंगा कि लास्ट ईयर में जो भी अपन ने टर्नओवर किया, हाँ, अगर उसका 50% भी अगर अपन कर लेते तो अपन ये समझेंगे अपन ने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया। तो इसका माने हम लास्ट ईयर से, मेरा वही कहना था कि हम पिछले साल जो हमने बिजनेस किया है उससे हम इस बार कम बिजनेस करेंगे, वही मेरा कहना है। और अपने आप को संभालना बहुत बड़ी बात है। ये साल में 2020 में हर आदमी को अपने आप को संभालना बहुत अच्छी बात रहेगी कि भाई ज्यादा खर्चा नहीं करे, फालतू खर्चा नहीं करे, अपने आप को संभाले, वो ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल, मैं प्रकाश जी के साथ एग्री करता हूँ। 50% तक मैक्सिमम साइड है 50% तो। प्रकृति डाटा के हिसाब से जो हमने प्रेडिक्ट किया है, अगस्त तक हमें लगता है कि 50-60% तक हम रिकवर कर सकते हैं, मतलब पूरी एसीपी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो उसका बात वही सही है।
लेकिन पवन जी की राय यहाँ से अलग आ रही है, और पवन जी उस राय जो आपकी 25-30% वाली है वो क्यों आ रही है, और उसे आपकी राय पे चले तो डीलर फैब्रिकेटर उनका क्या होगा और वो कैसे संभालें अपने आप को। और ये टू दी पॉइंट भी पता है, साथ में मैंने एक पॉइंट रेज किया था कि डॉलर बढ़ गया है और हम चाइना पे हेविली डिपेंडेंट है, इसमें कोई वे आउट दिख रहा है क्या? यानी 3 सवाल पूछे मैंने आपसे। एक, आप 25% रिकवरी कह रहे हैं, एक एक करके, एक एक नहीं, तीनों में एक ही में जवाब दे दीजिए। एक तो 25% रिकवरी, यहाँ पर आधे से ऊपर की रिकवरी है। दूसरा, चाइना पे हम डिपेंडेंट है, प्राइस के ऊपर दबाव है या नहीं है? अब दोनों बता दीजिए साथ में। देखिए मैंने पहले जो लाइन बोली थी, मैंने बोला था कि पहले 6 मंथ का हमारा 25% है, ये एलस्टोन का 6 मंथ का है, जो हमारा 6 मंथ स्टार्ट होगा फ्रॉम 1 अप्रैल। तो शुरू के 6 महीने में एलस्टोन 25% सेल्स एक्सपेक्ट कर रही है। उसके बाद के जो हमारे पास 4 महीने बचेंगे, तो उसमें हमारी सेल्स थोड़ी बढ़ेगी, मे बी जो जैसा सब लोग सजेस्ट कर रहे हैं 50% हो जाएगी। तो ओवरऑल इट वुड बी अराउंड समवेयर 35 to 40%. And what about the price? Is there any upward swing in price? Dollar impact? प्राइस की बातें होती रहेंगी, बट इंक्रीज करने की ताकत नहीं है इंडस्ट्री की अभी। चाहे कुछ भी हो, चाहे हम अपना प्रोडक्ट पे जो मार्जिन पहले हम मान लीजिए 10% कमा रहे थे, हम अपना मार्जिन 5% करेंगे, 4% करेंगे, 3% करेंगे, बट अभी इंडस्ट्री की स्थिति नहीं है प्राइस बढ़ाने की। बातचीत जरूर होगी आपस में हमारी के प्राइस बढ़ाते हैं, ये हो गया वो हो गया, बट अभी हम इतना करेज ही इकट्ठा नहीं कर पाएंगे कि हम प्राइस इंक्रीज कर दें अपना। प्रशांत जी, एसीपी सेक्टर में काफी मटेरियल हम पहले देखते थे कि इंपोर्ट आता है, और एक टाइम था जब आर्किटेक्ट फ्रेटर्निटी पर्टिकुलरली इंटरनेशनल ब्रांड्स को प्रीफर करती थी। क्या आप लोगों के परसेप्शन में कुछ बदलाव आया है ऑफ लेट 3 सालों में? नहीं, अपनी जितनी इंडियन ब्रांड्स है उसमें काफी जो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो मैं आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज ये सभी कंपनी वाले अपने साथ में है पैनल पे, तो आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट कि आप लोगों ने काफी इनोवेशंस और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए काफी मेहनत की है। मार्केट का रिक्वायरमेंट भी था, और काफी प्रोडक्ट्स हम लोग ने इंडियंस जो है प्रोडक्ट ही यूज करना शुरू किया है। बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर अभी हम लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स स्पेशली एसीपी यूज कर रहे हैं। प्रैक्टिकली इंडियन एसीपी ही अब एक्सेप्ट हो गया है कि हम लोग यहाँ का प्रोडक्ट्स को यूज करें, क्योंकि बहुत सारे फिनिशेस और क्वालिटी हमको मिल रही है। So I think already positive sentiments है towards Indian products as far as I am concerned, और we are happy with it. और मुझे लगता है कि एक particular factor है, बहुत सारी behind the curtain बातें हो रही हैं कि भाई हमको अब Indian products को ज्यादा यूज करना है। तो जितना ज्यादा Indian products आप लोग बनाएंगे, उसको प्रमोट करेंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 15-20% आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। हर आदमी नहीं कन्वर्ट होगा इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए, इंपोर्टेड वाला कंपोनेंट वाले लोग भी चलेंगे, बट एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेगमेंट खड़ा हो रहा है हम डिजाइनर्स के अंदर में भी और एक्चुअल यूजर के अंदर में भी, जो इंडियन प्रोडक्ट्स ही खरीदना चाहता है। थैंक यू। यानी प्रो इंडिया सेंटिमेंट्स इज बिल्डिंग अप स्ट्रॉन्ग। नाहर साहब, डू यू एग्री विद इट? योर वॉइस इज म्यूट। अनुपम जी, do you agree with it? The sentiment is similar in your fraternity also, because you all belong to different fraternity and different cities. Yeah, I can talk about myself first. I always prefer Indian brands, not today, but for years. And in the future, I am sure that the sentiment will be going higher towards the Indian brands. I'm 100% sure about it. आपने एक चीज कही थी कि इकोनॉमी will be important, लेकिन सर फसाड में तो एसीपी से ज्यादा महंगे ही सारे लगभग क्लैडिंग मटेरियल है, तो अब एसीपी इससे नीचे कहाँ जाए? ये तो खुद ही इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है सर। देखिए एसीपी का यूज क्या है पहले। इट इज नॉट द सरफेस व्हिच इज बीन बिल्ट, इट इज अ कवर, इट्स अ कवर। there is a building which is there is a finish, and there is a surface which has been prepared, right? So there are most of the products are the products which becomes the integral part of the building. Like if you are pasting it, or if you are building with the particular construction, the ACP is a thing which is more of a decorative aspect, which is more of a cover of a building, by which you are able to make a shape of the colors or make some kind of aesthetical facade due to this, right? So when the economy is already in a doldrums, already flowing in a little lower level, so I'll prefer
to develop a personality of a building rather than putting a decorative aspect of it, you know. So but at the same time, this can become economical in other way. Like my building is unfinished. After the break, there is no plaster, nothing, or whatever the specifications are. But if I have a ACP which is very economical and which is able to give me the facade as well as my usage, which is economical, which is useful, efficient, then definitely I'll prefer that as of now for this coming months. Then definitely we can slowly develop again for the brighter, you know, the यानी charismatic. एक समय ऐसा है जहां पर थोड़ी सी इकोनॉमी का ख्याल रखें, बाकी वापस अच्छे मटेरियल और क्वालिटी और प्राइस इररिस्पेक्टिव देखते हुए आगे डिमांड वापसी आएगी, राइट? डेफिनेटली आएगी। प्रकाश जी, एक सवाल है आपसे कि और पूरी एसीपी इंडस्ट्री से है कि एसीपी इंडस्ट्री इतनी हेविली डिपेंडेंट है चाइना में, जहां पर नेशनल प्रोडक्ट की बात हो रही है, वहां पर कॉइल तो आप लोग चाइना से ही लाते हैं। क्या कोई एक कंपनी यहाँ पर इफेक्टिवली सबके लिए कॉइल और उसमें इन्वेस्ट करके, यानी इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन फैसिलिटी की जगह इंटरडिपेंडेंट प्रोडक्शन फैसिलिटी नहीं कर सकते? ऐसी सलाह क्या आप लोग सोचते हैं कि ये काम आएगा? पूरी इंडस्ट्री जहां पर बार्टर कर सके, काम कर सके और प्रोडक्ट कॉस्ट को नीचे लाकर इंडिया को एक्सपोर्ट होराइजन पे भी बढ़ा सके। इज इट वर्थ टॉकिंग? अशोक जी और प्रकाश जी और सभी एसीपी के मैन्युफैक्चरर, पवन जी, आप लोगों से गुजारिश है कि इसका आप एक एक करके जरा अपना राय जरूर रखें। जी प्रकाश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये बोलना चाहूंगा कि विवा हमने एक कोटिंग लाइन लगा लिया है ऑलरेडी, और इंडिया में हिंडाल्को एक ऐसी कंपनी है जो हमको एल्यूमिनियम कोयल चाहिए वो हमको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो हम चाइना के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं है अभी, और अभी एक हम दूसरा कोटिंग लाइन भी लेके आ रहे हैं। और अभी ये लॉकडाउन ने हमको ये सिखा दिया कि एल्यूमिनियम कोयल भी अपने को खुद को बनाना है, तो उसका भी हम लोग वर्किंग हमने चालू कर दिया कि हम इंडिया में ही उसका भी प्रोडक्शन करना चाहेंगे। तो आई होप हम चाइना के डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। प्रकाश जी, आपका क्या मानना है? क्या इंडिया से इस तरह की कोई कंपनी ग्लोबल अलुके बॉन्ड की तरह बन सकती है कि यहाँ से भी 50 कंट्री में माल जाए? 100% बनेगी और 100% बनेंगे। हर बंदे को खाली मोटिवेशनल बनना है, बाकी 100% काम होएगा। और जो आज चाइना काम कर रहा है, आने वाले 2 साल बाद में, 3 साल बाद में इंडिया भी वही काम करेगा। जो आज थोड़ा दिख रहा है, हाँ हो सकता है ये 6 महीना 1 साल आदमी को सर्वे करना पड़ेगा, आने वाले 2 साल बाद में, 3 साल बाद में इंडिया के लिए बहुत अच्छे थॉट है ये। जी प्रशांत जी प्लीज बोलिए। प्रशांत सर, मैं कहूंगा कि अगर हमारी टाइल इंडस्ट्री जो है, आज टाइल इंडस्ट्री यूरोप में टाइल एक्सपोर्ट कर सकती है, चाइना को टाइल एक्सपोर्ट कर सकती है, तो एसीपी इंडस्ट्री क्यों नहीं कर सकती है? पवन जी बताएं, अनम्यूट करें पवन जी। देखिए, जैसे प्रकाश जी ने हौसला से बात कही है, ये बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि आने वाला जो समय है, 1 बरस, 2 बरस, 3 बरस, 5 बरस, वो समय का नहीं मालूम अभी, बट इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब तो बनेगा। और जब आप मैन्युफैक्चरिंग हब बनते हैं तो आपकी ताकत ऑटोमेटिकली एक एंथुसियाज्म आपके अंदर आ जाता है कि मैं पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करूं। तो जिस दिन आपके अंदर वो एंथुसियाज्म डेवलप हो जाएगा, फिर एक्सपोर्ट बहुत छोटी चीज है, सब चीजें कर लेंगे फिर हम। प्रशांत जी, एक सवाल जरा सब्जेक्ट से अलग है, लेकिन मैं पूछना इसलिए चाहूंगा कि मेरे को कई लोगों ने मैसेजेस भेजे हैं और हमारे कई फोरम्स में भेजते हैं कि आर्किटेक्ट लोग जवाब तो देते नहीं है सही आर्किटेक्ट फोरम पे, लेकिन आप एक बार पूछ लीजिएगा क्योंकि आप कुछ भी पूछ लेते हैं। तो प्रशांत जी और अनुपम जी से एक गुजारिश है खास कि सर, कई लोग फ्रीलांसर डिजाइनर हैं और कई छोटी फर्में हैं जिनके पास 5-6 प्रोजेक्ट भी नहीं है, वो यहाँ लिख रहे हैं, अभी भी क्वेश्चन में आ रहा है कि सैलरी वैलरी कैसे दे सर। एक ये ऑल्दो ये एसीपी का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वो उनका आगे का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, ऐसी फर्मों के लिए एडवाइस क्या है? जी प्लीज। देखिए, हम सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज जो हमारी लाइफस्टाइल है, अगर हम आज अपने पिछले 5 महीने के एक्सपेंसेस को लिखें सामने एक पेपर पे, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सबके डिफरेंट होंगे। और सबसे कम किस महीने का होगा? आप किस महीने का सबसे कम एक्सपेंसेस होंगे? मैं पर्सनल एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ। सबसे कम एक्सपेंसेस पर्सनल आपका इस मंथ का होगा, अप्रैल, जो आज कल खत्म हुआ है। और जो कि पर्सनल एक्सपेंसेस मैंने अपना कैलकुलेट किया, जो कि 10% भी नहीं है,
किस चीज में हम लोग खर्च करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने भी अपने स्टाफ को आज डिस्कस किया, आज उनको मैंने भी एड्रेस किया अबाउट दिस फाइनेंशियल एस्पेक्ट, कि हमें सबको अपने खर्चे कम करने होंगे, हमें अपने लाइफस्टाइल के जो चेंजेस जो इम्पोज हुए हमारे ऊपर उसको अडॉप्ट करना होगा, और कहीं ना कहीं जब हम अपने खर्चे कम करेंगे और एक इन ट्यून विद द सिचुएशन अपने आप अडॉप्ट करेंगे तो डेफिनेटली सिचुएशन बेटर होगी। एज फार एज सैलरी इज कंसर्न, सैलरी कहाँ से आती है? एक रोटेशन है, हम काम करेंगे, हम वर्क सबमिट करेंगे, उसके फीस मिलेगी, हम उससे सैलरी देंगे, तो एक रोटेशन है। तो रोटेशन कुछ ब्रेक हुआ है, लेकिन वो परमानेंटली ब्रेक नहीं है, वो एक ऑन होल्ड है, जिसको कि धीरे धीरे अनलॉक होगा। जो भी लॉक पीरियड कंडीशन में है वो धीरे धीरे लॉक्स खुलेंगे और धीरे धीरे उसमें फ्लो बढ़ेगा। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। अपने आप को मजबूती से खड़े रखने की जरूरत है, एंड डेफिनेटली इज गोइंग टू बी क्वाइट बेटर इन द नियर फ्यूचर। प्रशांत जी, आपका व्यू? मैं थोड़ा अनुपम जी ने बताया उससे एक और चीज अलग डायरेक्शन में बताना चाहूंगा, ताकि इसका बेनिफिट हमारे जो यंग जनरेशन है जो जवाब चाहते हैं उनको मिले। मुझे लगता है कि सैलरी डेफिनेटली आज कोई आर्किटेक्ट, मुझे नहीं लगता है छोटा हो बड़ा हो, उसके पास में 3 महीने का बैकअप रेडी हो, छोटा हो बड़ा हो, उसके पास में 3 महीने का बैकअप रेडी हो कि वो बैंक में अपना पैसा रखा है और सैलरी कर सके। तो मुझे लगता है कि हमको सैलरी एक पार्ट है और डिसबर्समेंट दूसरा पार्ट है। आपके पास में जब पैसा आएगा तो आप डिसबर्समेंट दे पाएंगे। अगर आपके बैंक में पैसे ही नहीं है, जो क्वेश्चन वही आ रहा है कि हम पैसे कहाँ से लाएंगे, तो डिसबर्समेंट आप उतना ही दे पाएंगे जो पॉसिबल हो। तो अनुपम जी ने कहा ऐसे जो मिनिमम खर्चा है वही हमको एज अ सैलरी डिसबर्समेंट देना पड़ेगा। अगर आपके कोई स्टाफ की सैलरी 50,000 है तो आप उसको 50,000 डिसबर्समेंट 3 महीने 4 महीने तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे अगर पैसे ही नहीं आ रहे आपके पास। सो यू विल हैव टू डिसबर्स ओनली दैट मच मनी, जो मिनिमम खर्चा है जो अनुपम जी ने बताया। बाकी के उसके अकाउंट में लिख के रखना पड़ेगा अपने को कि भैया आपकी ये सैलरी हमको देनी है, जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं आपको दूंगा। उसके सिवा मुझे नहीं लगता है कि ये किसी के पास में कोई चारा है, क्योंकि फंड नहीं है जैसे सब कह रहे हैं, तो हम सैलरी कैसे देंगे? छोटे आदमी के छोटे खर्चे, बड़े आदमी के बड़े खर्चे। तो वी आर ऑल इन द सेम बोट एंड आई एग्री विद अनुपम जी, अपने को हिम्मत रखनी पड़ेगी, इकोनॉमाइज करना पड़ेगा और आगे बढ़ते रहना। नाहर जी, आप क्या देखते हैं अपने सेक्टर में? सेक्टर वाइज तो आई थिंक सबका हालत वही है जैसा नॉर्मल कंज्यूमर का है या कोई भी एसीपी वालों का है। आई थिंक एवरीबडी इज इन अ टाइट फाइनेंशियल पोजीशन एंड ये लॉकडाउन खुलते ही सबको अपना पोजीशन एक्चुअली समझ में आएगा कि क्या है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अगर आते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज वी हैव टू डील विद इट। चेंजेस बहुत जरूरी है अपने लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में। हमारे ऑफिस में स्टाफ कितना रखते हैं, साइट पे इंजीनियर कितने रखते हैं, वर्किंग आवर्स क्या करते हैं, कितना एफिशिएंट होते हैं। आई थिंक लाइफस्टाइल चेंज और उसको अडेप्ट करना आगे समझदारी होगा हर आदमी के लिए। सो आई थिंक व्हेन एवरीबॉडी, नॉट ओनली इंडिविजुअल बिल्डर या आप में से कोई भी, बट हर आदमी अगर अपना लाइफस्टाइल चेंज करके थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, whether it is efficient in living, whether it is efficient in supplying products which are cost effective या कोई भी चीज में, तो आई थिंक ओवरऑल सिस्टम में चेंज आएगा। तो आई थिंक आई एम ऑफ दैट ओपिनियन। थैंक यू वेरी मच। इंडस्ट्री से कोई बता सकता है कि हमारी इंडस्ट्री जो एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल इंडस्ट्री है, वहां पर सर इस फ्रंट पर क्या इशू है और इसे आप लोग कैसे एड्रेस कर रहे हैं? आप लोग क्या पेमेंट्स नहीं आ रही है तो सैलरीज का क्या सिचुएशन है? ये सवाल जो चाहे वो ले सकता है ऐसे हाथ उठा के। देखिए, जहाँ तक एसीपी इंडस्ट्री की एज अ होल है, वो स्थिति खराब नहीं है। हमारी स्थिति सभी की स्टेबल है। कोई ऐसा नहीं है कि हम सब लोग तकलीफ में हैं या हमारे पास सैलरीज देने के लिए नहीं है, या ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, बट ऐसा होता है कि इंडिया जो मेंटेलिटी है वो हमेशा सेफ होके चलता है कि मालूम नहीं है स्थिति कब तक प्रोलॉन्ग करेगी। ये स्थिति हमारी 2 महीने में ठीक होगी, 4 महीने में ठीक होगी, 6 महीने में ठीक होगी। मान लीजिए मैंने उनको आज सैलरी पूरी दे दी और मैं फिर उनको बोलता हूं कि भाई अब चलिए मार्केट खोल गया, उस दिन मेरे पास सैलरी देने के लिए नहीं होती है। तो आदमी हमेशा सेफ होके चलता है इंडिया में कि ठीक भाई अब मैंने कोई अप्रैल में मेरा कोई काम नहीं हुआ, मेरे पास कोई कलेक्शंस नहीं हुए हैं, तो आप लोगों को आपके एक्सपेंसेस भी घर पे रहकर बहुत कम हुए हैं,
तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को प्रैक्टिकली समझेंगे और हमें ऐसा सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है भाई, कि आपका काम भी चल जाए और हमारा काम भी चल जाए, क्योंकि कहीं पर उनकी सेविंग भी है और कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री को प्रॉब्लम तो है ही ना। अब ये स्थिति अप्रैल में भी लगता है कि शायद लॉकडाउन में बीत जाएगा हमारा, और उसके बाद की स्थिति भी बहुत कंफर्टेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को ये बैलेंस आउट करना पड़ेगा कि कैसे कैसे हमको सैलरीज देनी है। राइट, सो ओवरऑल द सिनेरियो एंड कंक्लूजन कमिंग हियर इज दैट सैलरीज को फ्लेक्सिबल रखना ही होगा, चॉइस नहीं है। रिजर्व फंड्स इतने नहीं है, और अगर हैं भी तो आगे के शायद काम आए, लेकिन जनरली रिजर्व फंड्स नहीं है कि सैलरी दी जाए, और सैलरी दी जाए यानी पूरी सैलरी दी जाए। सैलरी जरूर एक कंफर्टेबल ब्रैकेट में न्यू नॉर्मल के हिसाब से जिसमें सबका काम चल जाए। इस पर आर्किटेक्ट कम्युनिटी, बिल्डर कम्युनिटी और इंडस्ट्री लगभग सभी एक बात से सहमत हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी टीम के लोग यहाँ सुनते होंगे वो इस बात से तस्दीक करते हुए इसे साथ लेकर चलेंगे। एक सवाल जो बहुत जरूरी है, अगले एक साल में लोग सपने देख रहे हैं कि यहाँ बहुत इंडस्ट्रीज आएंगी, क्योंकि चाइना से सब लोग भाग रहे हैं। इंडस्ट्री में एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल और फसाड का एक देसी रूप देखा गया है, टीन शेड लगा के, कंक्रीट बिल्डिंग में ग्लास लगा के। मैं आर्किटेक्ट लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये बदलेगा? जैसे अगर हम बाहर जाते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में, वहां की इंडस्ट्रीज का फसाड बहुत अच्छा होता है, इंडियन इंडस्ट्री में फसाड क्यों नहीं बढ़िया होता सर? माय क्वेश्चन अगेन टू मित्तल जी एंड सुतारिया जी। पहली चीज तो ये कि सुंदर की परिभाषा क्या है आपकी? फंक्शनल हो और देखने में अच्छा लगे। या देखने में क्या अच्छा लगे? तो देखिए, जो इंडस्ट्री हम देखते हैं, एक शेड बना, एक स्ट्रक्चर बनाया, उसके ऊपर शेड रख दिया, ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। अगर आप आज के पिछले 2 साल के अंदर बनी हुई इंडस्ट्रीज के आपको भेजूं, हमारी बनाई हुई, हमारे और आई हुई, तो आप सरप्राइज होंगे कि क्या इंडस्ट्रीज बन रही हैं। वो पुरानी बात हो गई जब ऐसा था कि हम लोग बहुत हल्का आंकते थे आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मेरे साथ जो आर्किटेक्ट्स हैं इस पैनल में वो एग्री करेंगे कि वो बहुत कुछ बदल चुका है। उसके बहुत रीजंस हैं, मटेरियल्स, उसका स्ट्रक्चरल सिस्टम, पीईबी का इंट्रोडक्शन, फसाड ट्रीटमेंट्स का मार्केट, एज वेल एज सोलर पैनल्स का इंट्रोडक्शन, इन सब चीजों ने मिला के जो कवर था एक इंडस्ट्री का वो बदल दिया है। आने वाले टाइम पे डेफिनेटली और बढ़ेगा, इम्प्रूव होगा, इंडस्ट्री वैसी ही नहीं रहेगी जैसी हुआ करती थी। दूसरा, एक मैंने कुछ टाइम पहले एक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सेमिनार में एज ए स्पीकर गया था, मैंने वहाँ यही बात की थी कि वहाँ पे जो अल्टीमेटली जो लोग काम करते हैं, चाहे एक 5 स्टार होटल में लोग काम कर रहे हैं या एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो इंसान है। आपको उनको वो कंफर्ट लेवल देना है, आपको उनको भी एक वर्किंग कंडीशंस देनी है। सो इंडस्ट्री भी उसी डायरेक्शन में चल रही है कि उनकी ज़्यादा एफिशिएंसी के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, जब अंदर का एनवायरनमेंट अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली बाहर का एनवायरनमेंट भी ठीक करेंगे। इट विल नॉट रिमेन द सेम इट वाज लाइक द वे इट वाज बीन ट्रीटेड अर्लियर, आई एम श्योर। प्रशांत जी, आप क्या कहते हैं? आप सर ने कहा कि 2 साल में बहुत बदलाव आया है, मैं मानता हूं कि कुछ जगहों पे डेफिनेटली बदलाव हमें दिखता है, लेकिन ऑन दी होल अभी भी बहुत काम की जरूरत है और बदलाव की जरूरत है, लेकिन लोग बहुत प्राइस कॉन्शियस हैं। क्या आप भी देखते हैं कि वो प्राइस कॉन्शियस लोग न्यू मटेरियल्स को ट्राई करेंगे? देखिए, इंडिया तो प्राइस सेंसिटिव मार्केट पहले से रहा है और रहेगा, बिकॉज हम लोग जिसको बोलते हैं तोल मोल के जोल, क्या बोलते हैं हिंदी में कहावत है ना, वैसे यही है, हम हर चीज को पैसे से गिनते हैं, तो वो तो इंडिया में रहेगा। बट जो बदलाव मैं देख रहा हूँ, एक तो ऑल ओवर द वर्ल्ड एसीपी को लेके एक सबसे बड़ा कंसर्न आया फायर का, तो मैं देख रहा हूँ कि एक क्वालिटेटिव चेंज जो है एसीपी इंडस्ट्री में इंडिया में भी आ रहा है और आगे जाके भी आएगा। दूसरा, जो नॉर्म्स है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, जैसे फसाड को लेके मुंबई के अंदर ग्लास और एसीपी से अगर हम यूवी फसाड को कवर करते हैं तो फायर डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हम लोग के लिए गाइडलाइंस इशू कर रहा है, और बहुत सारे केसेस आपने पढ़े हैं जहाँ पे लोग ट्रैप होके स्मोक की वजह से फायर के अंदर मर गए हैं, स्पेशली ग्लास और फसाड जिसमें बना हुआ है, जिसमें नॉर्मल विंडोज नहीं है उसमें। तो मुझे लगता है कि 2 फ्रंट के ऊपर काम शुरू हो चुका है, एंड दिस विल डेफिनेटली इम्पैक्ट द एसीपी इंडस्ट्री इन शॉर्ट टर्म ऑल्सो। तो ये अपने लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो मैं समझता हूँ। और अब ऐसे हो गया कि छोटे से छोटी जगह में अगर मैं जाता हूँ तो टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी मैं जाता हूँ,
जहाँ पे बस्ती 1 लाख की भी नहीं है तो वहां का आदमी बोलता है कि हमको ग्लास और एसीपी का बिल्डिंग दे दो। तो मुझे लगता है कि एसीपी का यूज बढ़ा है और बढ़ेगा, बिकॉज उसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज हैं। बट उसको कैसे टेक्निकली ठीक करना, तो हमारे जो फैब्रिकेटर भाई हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पूरे कॉन्फ्रेंस में, तो उनको एक जो जुगाड़ू स्टाइल में हम लोग एसीपी और ग्लास लगाते हैं, बहुत इंडिया में 70-80% काम आज भी जुगाड़ू स्टाइल में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमको उसको चेंज करना होगा, नहीं तो इट विल बैकफायर ऑन ऑल ऑफ अस, स्पेशली एज एन इंडस्ट्री विल सफर, क्योंकि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। सेकेंडली इंडिया जो आपका ये कहना है कि इंडस्ट्री को अपना कदम और ज्यादा बढ़ाना होगा एज इन अवेयरनेस की वो जुगाड़ू से ऑर्गेनाइज की तरफ बढ़े, प्रोसेस कंट्रोल बढ़े। प्रशांत जी, आप क्या यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल भी, और इसमें स्पेशली एसी मैन्युफैक्चरर, एल्यूमिनियम सेक्शन मैन्युफैक्चरर्स, ग्लास मैन्युफैक्चरर्स को साथ में आके अगर ये लॉबी नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट विल कम आउट मोर एंड मोर स्ट्रिक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, बिकॉज the moment there is a fire, the first thing all fire officers across the country are saying इसके ऊपर ग्लास का फसाद था। अब जहाँ पे ग्लास है वहां पे एसी पे 100% होता ही है, आप देख लीजिए, ग्लास विदाउट एसी पे लगता ही नहीं कहीं पे भी। तो आपको ये समझ के चलना होगा कि इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द इंडस्ट्री। प्रगत जी, इसमें मैं कुछ बताना चाहूंगा। इसमें ऐसा था, मैं बिल्कुल अनुपम जी के साथ बिल्कुल उनके साथ हूँ। इज एब्सोल्युटली राइट कि पहले और आज की डेट में जो मेरी ट्रैवलिंग में करता हूँ काफी वर्ल्ड में, तो इंडिया की बिल्डिंग्स अभी फसाड में देखना चाहूंगा और अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि हम काफी अच्छा कर रहे हैं बाकी कंट्री से। इसमें प्रगत जी कुछ प्रोडक्ट्स है जो इंडिया में पहले नहीं थे, जैसे वर्गो के अंदर ही हमारे पास 3 प्रोडक्ट इन हाउस हैं, जैसे कि सॉलिड एल्यूमिनियम जो अभी इंडिया में एक्सेप्टेंस होना चालू हुआ है, और बाहरी कंट्री में पहले एल्यूमिनियम सॉलिड पैनल बाहर की कंट्रीज में एक्सेप्टेड था, इंडिया में अब चालू हो रहा है। और एयरपोर्ट्स देखेंगे, गवर्नमेंट्स के बड़े प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो वहाँ सॉलिड एल्यूमिनियम पैनल लगते हैं। सेकेंड, एचपीएल जो पेपर वाला हम बोलते हैं, एचपीएल लैमिनेट्स वाला, वो प्रोडक्ट काफी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। सो वी कैन से, और थर्ड हमारा एसीपी है ये, राइट, वी कैन से कि हमारे पास वैरायटीज अब इंडिया में बढ़ती जा रही है और इनके पास नए से नए प्रोडक्ट्स अब आज की डेट में आ रहे हैं, राइट। लेकिन बात यहाँ निखिल जी वो हो रही है, वो वर्कमैनशिप की हो रही है कि जो फिक्सिंग हो रही है, जो फैब्रिकेशन हो रहा है, वो जुगाड़ू हो रहा है। आप बात मटेरियल की कर रहे हैं, और बात अभी जो उठी है कि इंडस्ट्री को जहां भी खड़ी है वहां से कुछ माल बेचने के आगे बढ़ के अवेयरनेस भी करना होगा, और वो फैब्रिकेटर के लिए करना होगा, ना कि वो सिर्फ वो आर्किटेक्ट को अवेयर करने के लिए करना होगा। आई थिंक दिस वाज द पॉइंट ही वाज मेकिंग। एंड नाहर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप वर्कमैनशिप में कोई फ्लॉ देखते हैं क्या, क्योंकि आप तो खुद भी बहुत सारा यूज करते हुए ऑब्जर्व किया। इनफैक्ट मैं आर्किटेक्ट भी हूँ खुद, और प्लस मैं प्रोजेक्ट मैनेजर भी हूँ। तो हमने हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं या जो भी हम कर रहे हैं या जो भी हम देखते हैं दूसरे प्रोजेक्ट्स में, इट्स मेन थिंग इज कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड। और अभी रेरा आने से थोड़ा स्टिकनेस हो गया है, विच इज वेरी गुड, दैट जो भी हम लोग एज एन आर्किटेक्ट जो पर्सपेक्टिव बनाते हैं साइड पे, वही कोशिश करते हैं कि वैसा ही लुक एंड फील आए। सो ड्राइंग्स जितने भी है वर्किंग ड्राइंग लेवल पे सॉर्ट आउट हो जाते हैं, तो उसके अंदर आपके जो ओपनेबल पैनल्स हो ग्लास में, या आपके जो एसीपी फसाड है, या आपके जीआरसी फसाड भी होते हैं, बिकॉज देयर इज अ जीआरपी इज आल्सो बीइंग वाइडली यूज्ड बाय अस राइट नाउ इन आवर प्रोजेक्ट्स। तो फायर डिपार्टमेंट हैज रूल्स एंड laws of the opening size and openable panels and how much percentage it should be open. If everybody is responsible, हर आदमी अगर responsible way में काम करेगा, तो obviously ये fire and all these hazards will be minimized and lives will be saved. The problem has happened कि foreign countries से maybe सबने पहले glass facades देख के पूरे कंट्री में यहाँ शुरू कर दिया, और जब कुछ नहीं मिला तो ग्लास और एसीपी लगाना शुरू कर दिया, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स को भी डेकोरेशन करना चालू कर दिया, इट्स लाइक मेकअप करना चालू कर दिया। बट एक्चुअली अब फॉरेन कंट्रीज में इट इज यूज्ड एज मोर फंक्शनल। तो ओवर अ टाइम लास्ट फ्यू इयर्स में उसका फंक्शनैलिटी सबको समझ में आ रहा है, बट स्टिल पीपल आर नॉट वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स डिजाइनिंग, क्योंकि पर्सपेक्टिव कुछ और बनाते हैं और साइड पे एग्जीक्यूशन कुछ और होता है। So as ACP companies, as fabricators, as vendors, I think people जितने भी fraternity में लोग हैं उनको आर्किटेक्ट को भी गाइड करना चाहिए, उनको डेवलपर को भी गाइड करना चाहिए, बिकॉज बहुत टाइम डेवलपर को अवेयर नहीं होता है कि इससे इसका इम्पैक्ट क्या होता है। सो आई थिंक एज एंड व्हेन जितने फैब्रिकेटर्स अवेयर होंगे उतना वो एडुकेट करेंगे। इट्स अबाउट लर्निंग विद ईच अदर, सबसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। एंड आई थिंक दिस लॉकडाउन has definitely
taught us, and as you said co-working space, in fact co-working space तो बहुत जरूरत है क्योंकि वहां पर ज्यादा लोग मिलते हैं तो एक दूसरे से सीखने को मिलता है। आज जो सब्जेक्ट हमने नहीं पढ़ा था कॉलेज में वो सब हमने आज सीख लिया। अनुपम जी कुछ? हाँ, मैं थोड़ा इस पॉइंट पे एक छोटा सा टॉपिक पॉइंट है जो हम लोग इस बीच में मिस आउट कर रहे हैं, जो हमने जैसे वर्ड अभी प्रशांत जी ने जुगाड़ वर्ड यूज किया उसी से लिंक है। ये हर इंडस्ट्री में एक कंपोनेंट होता है प्रोडक्ट का और एक कंपोनेंट होता है उसको लगाने का, विच इज कॉल्ड इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन के लिए आपको चाहिए होते हैं लोग। जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी रही है हमारे यहाँ यूज होती है उसकी वजह ये थी हमारे पास मैन पावर हमेशा भरपूर रही है। वी आर रिच विद दी मैन पावर। लेकिन सिनेरियो इसमें भी बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। आप सबसे ज्यादा जो इस समय हॉट टॉपिक है वो है माइग्रेशन। जो माइग्रेंट लेबर है वो अपने गांव में वापस जा रही है और देयर विल बी अ सिचुएशन व्हेन लेबर विल बी लेस इन योर प्रोजेक्ट। हर प्रोजेक्ट में लेबर कंपोनेंट, स्किल्ड लेबर डेफिनेटली कम होने वाली है आने वाले टाइम पे। सो मेरा एक सजेशन है इस इंडस्ट्री से कि अपने प्रोडक्ट के अलावा आपके फैब्रिकेशन सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करिए, उसको ज़्यादा मैकेनाइज्ड बनाइए, उसको बहुत टेक्निकली साउंड बनाइए और उसमें कोई भी स्पेस मत छोड़िए जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाने का, मैनुअल वर्किंग का, या उसमें देयर शुड नॉट बी एनी लीकेजेस which allows anybody to try something fishy, because this was always needed, but because of the labor component, the availability of labor component, it was not happening like that. But now since labor component is also getting reduced, this industry should work out on the installation part much more than they did in the past. मैं यहाँ पर एक चीज समझ पा रहा हूँ कि इंडस्ट्री से एक्सपेक्टेशन बहुत है। आर्किटेक्ट्स हो, कई लोग राइट में चैट बॉक्स में बहुत सवाल पूछ रहे हैं और इसके अलावा भी बहुत सवाल आते हैं। तो ये जरूर है कि इंडस्ट्री से एक्सपेक्टेशन बहुत है। इंडस्ट्री को, फैब्रिकेटर कम्युनिटी या फैब्रिकेशन प्रोसेस को इनोवेटिव और आउट ऑफ बॉक्स सोचते हुए कुछ नया और कुछ बेहतर करना होगा। सिर्फ जुगाड़ से काम नहीं चलेगा। सुतारिया जी प्लीज, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज ऐड। देखिए, जैसे अनुपम जी ने जो पॉइंट कहा ना, उसमें एक कदम आगे इंडस्ट्री लीडर्स के लिए, जैसे एशियन पेंट्स है, एशियन पेंट्स हैव नाउ स्टार्टेड सप्लाई एंड अप्लाई, सो दे हैव देयर ओन रेगुलर एप्लीकेटर्स। तो क्या होता है, दे आर एबल टू गारंटी द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इन एग्जीक्यूशन। दे कैन ऑलवेज से कि हमने आपको 50 लीटर पेंट दे दिया, अब आपने किया आपकी मर्जी। लेकिन अगर एप्लीकेटर गलत है तो उनका पेंट भी का नाम भी खराब हो रहा है। तो वो क्वालिटी कंट्रोल लाने के लिए इट्स अ वेरी गुड सजेशन जो अनुपम जी ने कहा कि the industry leaders should come up with their list of applicators and move on only from खाली आप सप्लाई नहीं करिए, बट उसको भी आगे कैसे ठीक से वो अप्लाई हो रहा है उसके अंदर भी आप इन्वॉल्व होइए, लोगों को ट्रेन करिए और अपने साथ जोड़िए। तो आई थिंक द ओवरऑल एवरीबॉडी विल बेनिफिट आउट ऑफ इट, ऐसा मुझे लगता है। क्वेश्चन है अनुपम जी से, एक छोटा सा सवाल है एक मेरा, निखिल जी एक सेकंड, इस कंटिन्यूटी में मैं अशोक जी की राय जानना चाहूंगा कि अशोक जी क्या ये पॉसिबल है? Yeah, we have already initiated this. Since last 1 year, we are giving the training to the how to rightly apply the ACP. That you are talking about awareness, and he is talking about giving your list of fabricators. Yeah, to fabricator. No, we have not certified them, but we have. They have taken the participation in our seminar where we educating the how to rightly apply the ACP. That is awareness. What element they said use? What about the assurance of a builder or a customer? उसका assurance ACP सप्लाई करने वाला नहीं लेता है। मैं वो बात पूछ रहा हूँ। हाँ, तो that is the next step we appreciate, and that will be our next step to that. You are actually planning in that direction. Yeah. All right, निखिल जी अपना सवाल पूछिए। अनुपम जी, मेरा एक छोटा सवाल था कि जब हम ऐसे कुछ प्रैक्टिस करते हैं, अशोक जी ने बहुत सही बोला और इनका मार्केट में दिखता भी है, सेम हम भी ये अवेयरनेस कर रहे हैं। एक अवेयरनेस हो गया, बट आपका बात सही है कि नॉर्म्स ऐसे होने चाहिए मार्केट के अंदर सर, बट ये नॉर्म्स को कंपाइल करने के लिए ना इसमें कॉस्टिंग काफी ऊपर आता है। फिर जब हम ये कॉस्टिंग प्रेजेंट करते हैं एट मिनिमम मार्जिन, देन हमारा जो कंपैरिजन बाकियों के साथ होता है तब हम बहुत ही हाई रेंज में आ जाते हैं। तो एक मिनट, सॉरी, अब उसको कम्पीट करने के लिए हमें भी डाउनग्रेड करना पड़ता है कि चलो हमारा प्रोडक्ट तो एटलीस्ट ये आखिरी एक्सेप्ट करेंगे। मैं शायद प्रशांत जी शायद एक्सेप्ट मान रहे मेरी बात को। ये काफी बड़ा हमारे लिए इशू आया, हमने ट्राई किया ऑर्गेनाइज करने को। ये आपकी आदत है, ये एक आदत है
आपके नहीं कर रहा मैं, माइंड मत करिएगा, ये हमारी आदत है, हम कॉम्प्रोमाइज करते रहे हैं, हमेशा करते रहे, लेकिन जब आप पूरी एक बड़ी इंडस्ट्री एक साथ यहाँ बैठी है एक फोरम पे, तो आपको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कंपटीशन हमेशा एप्पल टू एप्पल होगा, बहुत पुरानी कहावत। तो हम भी एज ए यूजर, एज ए स्पेसिफायर, वी वांट टू बी वेरी श्योर दैट इन आवर प्रोजेक्ट हैज टू बी डन द वे वी वांट। कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जब हमने पूरी सरफेस को पूरा एसीपी हटवाया है, निकलवाया है और दोबारा लगवाया है। Why it happened? Maybe the product was good, but the installation was bad. I can give you photographs, I can show you those details. एक अच्छे प्रोडक्ट ने, एक अच्छे खासे प्रोडक्ट ने एक प्रोडक्ट का सत्यानाश कर दिया just because of the installation. अनुपम जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें जरूर भेजिएगा, हम इसे अवेयरनेस के तौर पर जरूर पब्लिश करना चाहेंगे। तो मेरा इसमें जो पॉइंट है आपके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड वो ये है कि आज से शायद मैं ये प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा कि मैं उसी कंपनी का प्रोडक्ट पे करूंगा जिसका एक लिस्टेड वेंडर होगा और जिसके नॉर्म्स मेरे पास कि ऐसे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 चेकलिस्ट होगी, उसमें चेक करूंगा तभी। बहुत अच्छी बात है। अगर आर्किटेक्चर एंड स्पेसिफायर फ्रेटर्निटी इतनी कमिटेड और इतने कन्विक्शन के साथ आने लग जाए तो हमारी मटेरियल इंडस्ट्री में क्वालिटी के आधी समस्याएं तो वैसे भी दूर हो जाएंगी। मैं सबसे पहले प्रकाश जी आप ऐड कीजिए जल्दी जी। वी हैव लेस टाइम नाउ, नेक्स्ट 10 मिनट्स विल बी फिनिशिंग इट विद टेक अवे। जल्दी बताइए जी प्रकाश जी। पहले एसीपी ओनली सिलिकॉन से लगाया जाता था, अभी विदाउट सिलिकॉन मेल फीमेल सेक्शन से लगता है और वो बहुत अच्छे ढंग से लगता है। और फैब्रिकेटर की ट्रेनिंग और फैब्रिकेटर की लिस्टिंग का क्या, उसका हर चीज हम लोग हर जगह पे जाके पूरा सिखाते हैं, हमारे पास पूरी टीम है। फैब्रिकेशन एक्चुअली जो बात कही जा रही है आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी से कि फैब्रिकेटर्स आर नॉट दैट, प्रोबेबली देयर प्रोसेस इज नॉट ट्रस्टवर्दी। कंपनीज को कुछ न कुछ इंश्योर करना होगा, उनको जिम्मेदारी लेनी होगी, वो किसी थर्ड पार्टी पे नहीं छोड़ना चाहते। दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग एंड दैट इज वेयर आपको वे आउट करना होगा। राजेश जी आपको कुछ भी नहीं ऐड करना है या कुछ एडेड है पहले से? नरेश जी आपसे पूछता हूँ, आपको कुछ ऐड करना है क्या? ट्रेनिंग के अलावा पॉसिबल है फैब्रिकेटर्स एंड प्रोसेस ड्रिवन बनाने, फैब्रिकेटर्स को अवेयर करने के लिए मेहनत हो रही है, लेकिन क्या लिस्टिंग पॉसिबल है? क्या कंपनी ऐसी कोई लिस्ट दे सकती है कि ये हमारे स्पेसिफाइड वेंडर्स हैं जो या फैब्रिकेटर्स हैं जो इस साइट पर काम करेंगे, ये सर्टिफाइड है, उनकी जिम्मेदारी कंपनी है? नरेश जी क्या ये पॉसिबल है? ऐसा नहीं, कोई चीज पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल हो सकती है बट मेरे को लगता है उसको कुछ टाइम लगेगा। इट मे बी 1 or 2 ईयर लग सकते हैं बट पॉसिबल है, ऐसा नहीं है पॉसिबल नहीं हो सकता ये। पवन जी, एल्स्टोन में ये प्रोसेस ऑलरेडी 2-3 साल से चालू है। हम लोग हर एरियाज के अंदर सर्टिफाइड कन्वर्टर्स बनाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनसे ट्रेनिंग लेते हैं, एक दूसरे को अपनी नॉलेज शेयरिंग करते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं वर्ल्ड क्लास फैब्रिकेशन सीखें। तो जो भी एल्स्टोन का हर एक आदमी नहीं, हर एक एरिया के अंदर हम लोग अपने सर्टिफाइड कन्वर्टर्स का सर्टिफिकेट देते हैं। जो लिस्ट आप कभी भी हमसे मांगेंगे तो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये ऑलरेडी एल्स्टोन के पैनल के अंदर 2-3 सालों से है। Mr. G. Balaji is saying that it is very difficult to certify Asian paint model in ACP industry because they are supplying also themselves and applying also in somewhat similar model. But best outcome from this whole process is कि ACP industry को improve करने की जरूरत है। वो applicators को, fabricators को process driven बनाने के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं उससे ज्यादा प्रयास करना होगा। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि इनको आज की डेट में अगले 6 महीने में सावधान होकर चलना होगा। मैं एक बार सबके पास लास्ट आऊंगा कि वो सजेशन दे अपनी टीम को, डीलर्स को और ट्रेडर्स को, फैब्रिकेटर्स को पोस्ट कोविड उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे लेफ्ट में प्रकाश जी दिख रहे हैं मेरे एक स्क्रीन पे। प्रकाश जी आपको 2 मिनट मिलता है, सबको 2 मिनट मिलेगा। योर सजेशन टू योर चैनल पार्टनर्स, योर सजेशन टू योर डीलर्स एंड फैब्रिकेटर्स, क्या है आगे का राह? मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि कंपनी उनके साथ है और वो कंपनी के साथ है। हमको पॉजिटिव रह के काम करना है और पॉजिटिव रह के ही काम करेंगे। अशोक जी, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि हम 100% पहले तो इंडियन प्रोडक्ट को ही यूज करें, डील करें और लगाएं। ये मेरा रिक्वेस्ट है हमारे चैनल पार्टनर से और हमारे जो एप्लीकेटर्स हैं उनसे। दूसरा, चाहे मेरे को पेमेंट देनी है, मैं वेंडर को पेमेंट दूं और डीलर को पेमेंट देनी है,
डीलर पेमेंट दे, और फैब्रिकेटर को पेमेंट देनी है तो फैब्रिकेटर डीलर को पेमेंट दे। जितना भी हो सकता है 100% नहीं हो सकता, 10% हो सकता है, 5% हो सकता है, 20% हो सकता है। जब तक ये चक्का नहीं चलेगा इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकेगी। जितनी जल्दी इस प्रोसेस में हम सब लग जाएं, पेमेंट के आदान प्रदान में, जिसके कारण चक्का रुक गया है, वो जितना जल्दी चालू करें, हम इकोनॉमी को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर पाएंगे। कोई इशू नहीं है कि हम अपने डीलर्स के साथ नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ नहीं है, या हमारे कन्वर्टर्स के साथ नहीं है। मैं 2 लाइनें यहाँ बोलना चाहूँगा, 2 रादर शेर सुनाना चाहूँगा जिससे हमको हौसला मिलेगा। शेर है टाइम के ऊपर, दूसरा शेर है हौसले के ऊपर। सब सुनना चाहेंगे? पानी को बर्फ में पिघलने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। कुछ पेशेंस रखना होगा। अगर हम पेशेंस रखेंगे तो हम कल के विनर हैं। मैं एक हौसले के ऊपर बोलना चाहूँगा, ये याद लगे हौसला, तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिल अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होता, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं। वाह! तो हमें बस ये हौसला रखना है और थोड़ा पेशेंस रखना है। We will be a winner. We will be a winner. राजेश भाई, सुंदर। जी राजेश भाई जी। वे ऐसा है कि ये हर वॉल पे लिखा हुआ है, ये टाइम भी हमेशा नहीं रहने वाला है, ये टाइम भी जाने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा अपन ये सोच सकते हैं कि 3 से 4 महीना हमारे लिए थोड़े बहुत तकलीफ वाले हैं। वो जाने के बाद पीछे जब देखेंगे तब लगेगा कि ये टाइम में भी हमने काफी कुछ सीखा है और काफी कुछ आगे बढ़ने के लिए प्लान किया है। तो 3-4 महीना निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, और उसके बाद एकदम उजाला उजाला दिख रहा है। तो सबसे पहले प्रकाश भाई ने कहा कि हम साथ खड़े हैं, हम साथ रहेंगे और हम हौसले के साथ खड़े हैं। और एक बात बोलना चाहूंगा कि जैसे हमने बोला था चाइना के लिए डिपेंडेंसी है, तो हमने और एक इनिशिएटिव लिया था। हमने एक यूरोप की कंपनी के साथ टाई अप किया है और उसका 100% सारे ही प्रोडक्ट, सारे फिनिशेस यहाँ पे लेके आए हैं। उसका अभी लॉन्च करने ही वाले थे कि ये लॉकडाउन में बंद हो गया, तो हमको ज्यादा टाइम मिल गया उसको लॉन्च करने के लिए। तो उसको बहुत अच्छी तरह लॉन्च करेंगे तो आर्किटेक्टों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा कि अलग अलग बहुत सारे यूरोपियन डिजाइन उनको मिलेंगे और बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे, और उसमें बहुत अच्छी गारंटीज भी है। प्रकाश जी ने कहा कि हम हौसले के साथ खड़े हैं। अशोक भैया जी ने कहा कि इंडिया का प्रोडक्ट लगाएं, मेरी यही गुजारिश है, और क्वालिटी पे ध्यान दें। पवन जी ने हौसले के ऊपर और थोड़ा वक्त संभाल के चलने के ऊपर 2 शेर कहे, जिसकी बहुत तारीफ हुई। राजेश जी ने कहा कि हम फिर उठ खड़े होंगे, जब अच्छा समय नहीं रहा तो खराब भी नहीं रहेगा। और नरेश जी, अब आपकी बारी है, आप भी कुछ सुना दें, कुछ कहें, स्पेशली डीलर्स और फैब्रिकेटर्स के लिए कि उन्हें आगे अपने पेमेंट्स के बिहेवियर को कैसे ठीक करना चाहिए, क्योंकि उनको आगे से पेमेंट, मैं चाहूंगा कि उस पे भी कुछ बोले आप। जी बोले। इसमें ऐसा है, मैं जितने भी हमारे डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, फैब्रिकेटर हैं, देखो उनके हम साथ खड़े हैं और वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। चेन मत रोकें, जो थोड़ा पेमेंट है जो हमारा फैब्रिकेटर और डीलर को दे, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूटर हमारे को दे, हम आगे जिसकी पेमेंट मत रोकें, कुछ ना कुछ पेमेंट करते रहें। टीम मेंबर्स हैं उनके साथ है, कंपनी काफी फाइनेंशियली स्ट्रांग है अभी आज के डेट में। मैं ये क्या चाहूंगा कि जो हमारे डीलर्स हैं, हम नो डाउट उनके साथ थोड़ा फ्लेक्सिबल है, बट इसके लिए वो नरेश जी ने बात बोला, एक फ्लो है ना, उस फ्लो को लेके वो देखते रहे। मैं प्रगति में थोड़ा कुछ और कहना चाहूंगा इस टाइम पे कि हमें ना अपने माइंड सेट के साथ खेलना चाहिए। अभी सबका माइंड सेट हमारा सर्वाइवल स्टेज पे आ चुका है आज की डेट में, तो सर्वाइवल स्टेज से हम निकल के प्रोएक्टिव स्टेज पे आए, मतलब कि हम ऐसा प्लान करें अपने माइंड के साथ कि ये लॉकडाउन को हम एक अपॉर्चुनिटी लेके चले कि इसमें हम क्या नया कर सकते हैं, और इसको हम सर्वाइवल स्टेज से लेके फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में आए। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच मतलब कि मैं और क्या अडॉप्ट कर सकता हूँ और क्या नया प्रोडक्ट कर सकता हूँ, कहाँ डाइवर्स कर सकता हूँ, राइट। मेरा ये कहना था सबको कि अगर हम एक एक्शन प्लान बनाएं कि 30 दिन का, जो भी लगता है, 1 साल का, 2 साल का एक एक्शन प्लान बनाएं, उस एक्शन पे काम करें, ना कि जो होना तो हो चुका है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेट्स सी द पॉजिटिव साइड, व्हाट वी कैन चेंज राइट नाउ, राइट। वी हैव टू कम इन रियलिटी नाउ। व्हाट इज द रियलिटी? Reality is that there is a lockdown,
and how we can achieve from that lockdown and what we can conquer from this. We should approach on that thing. मतलब कि हम इसके आगे इसको proactive और survival stage से निकल के futuristic approach में आए. बहुत बढ़िया. Thank you very much. Thank you very much for adding so much value. Anupam ji, any tips for the industry? Any tips for the trade? सबसे पहले तो निखिल जी ने बहुत बढ़िया बात कही, बधाई के पात्र हैं वो. उनसे अलग से फोन में बात करूंगा इसके लिए मैं. मेरी बहुत सिंपल गुजारिश है सबसे कि इस समय अनलॉक होने के टाइम, प्रोजेक्ट के रिवाइवल के टाइम पे प्राइस वॉर ना शुरू करें, बल्कि क्वालिटी और सर्विसेज पे पूरा फोकस रखें. क्वालिटी अच्छी होगी, सर्विसेज प्रॉपर होंगी, टाइमली डिलीवरी होगी और डेफिनेटली फैब्रिकेशन के लिए पहले ही बोल चुका हूँ, तो आपका सर्वाइवल भी है और आपका फ्यूचर भी है. बहुत सुंदर, बहुत वैल्यूएबल पॉइंट है. मिस्टर नाहर, प्लीज ऐड समथिंग हियर. Definitely. What is your advice, being a consumer side, you are a consumer here, what is your advice to suppliers and designer pretending both? I think सब panelists को सुना मैंने and I heard all of them, and I think first of all competition सब आपस में नहीं है, आपके आपस में competition नहीं है. Competition आपके दूसरे material suppliers में है जो available है market में. So if you have to compete with, or if you have to be better than anything else, maybe it's marble or stone or any other wall cladding material. आज I have been using ACP with marble finish in most of my lift lobbies and they look really good. Of course, ACP has little limitations. Maybe the corner profile is not come into the market where I can use the same color of my marble finish. So मैं marble छोड़ के मैं अभी ACP use करना शुरू करना चाहता हूँ because अब मेरे projects delay होंगे. I have to finish the projects in 18 months. मुझे 3 साल project नहीं चालू रखना है. तो wherever जो भी material मेरे लिए easily available होगा और मैं उसके साथ easily खेल पाऊंगा, उसके साथ easily construct कर पाऊंगा, उसके साथ easily finish कर पाऊंगा. Innovation is very important, as many of you all said. बहुत जरूरी है कि आप ऐसा प्रोडक्ट्स कंटिन्यूसली ये टाइम यूज करें कि कुछ इनोवेटिव और लाए मार्केट में, ताकि जब मार्केट खुले और हम मार्केट में अपने प्रोजेक्ट्स फिनिश करने आए, हम वो सारा मटेरियल यूज करके हमारे प्रोजेक्ट्स को जल्दी फिनिश करें. क्योंकि जितना जल्दी फिनिश करें और जितना कॉस्ट इफेक्टिवली फिनिश करेंगे, मींस अगर आपका रॉ मटेरियल्स कम से कम प्राइस में आपको मिलता है तो आप हमको ACP 150 रुपए में नहीं देके आप 100 रुपए में देंगे और 100 रुपए में नहीं देके 70 रुपए में देंगे. तो जितना कॉस्ट हमारा लो होगा उतना हम वो दूसरे मटेरियल से बेटर अडेप्ट करेंगे. जितना वो अच्छा लुकिंग होगा उतना हम बेटर हमारे जगह पे यूज कर सकते हैं. facade designing is not about only paint or about ACP, it's about lighting, it's about the overall look and feel. It's for the life of the building, because building 60 years 50 years जीता है और वो वैसे ही दिखना चाहिए. 17 साल हो गए मैंने इतने ACP ब्रांड्स यूज किए, यूरोबॉन्ड यूज किया, एल्यू डेकोर यूज किया. आज तक मुझे एक भी ACP ब्रांड मैंने कहाँ 10 साल पहले लगाया था याद नहीं है, लेकिन आज तक कोई भी ब्रांड ने मुझे प्रॉब्लम नहीं दिया है. बिकॉज ACP एज अ मटेरियल इज अ गुड मटेरियल. सो नाउ द कंपटीशन इज वेयर यू हैव टू इनोवेट. आप जितना मोबाइल ऐप बनाए, आपको पेमेंट का प्रॉब्लम है, आप मोबाइल ऐप बनाओ. जिसके पास पेमेंट है आपको ऐप पे ऑर्डर करेगा, आप जाके पेमेंट लो 100% और डिलीवरी करो. थोड़ा प्रोसेसेस में बदलाव लाओ ताकि वैसे ही सेम सिस्टम के परचेज ऑर्डर गया, 50% एडवांस गया, फिर 40% डिलीवरी के बाद फिर 10%. उल्टा हम लोग इनएफिशिएंट हो रहे हैं एक्चुअली ये सब पेमेंट सिस्टम में. तो जितना आप इजी सिस्टम्स बनाओ जो ऐप एनेबल्ड है, मतलब इतना सिस्टम होना चाहिए कि मटेरियल साइट पे पहुंचने के बाद वो कौन से फ्लोर पे जाके उसको अनलोड होना चाहिए, ये भी बिल्डिंग का सिक्योरिटी गेट को मालूम है कि ये मटेरियल यहाँ रखना चाहिए. सो इट्स नॉट अबाउट क्रिएटिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इट्स अबाउट यूजिंग थिंग्स एफिशिएंटली. और आई थिंक ये टाइम यू ऑल हैव टू यूटिलाइज कि हमको और आपके मार्केट से क्या उम्मीद रखनी चाहिए और ये हमको दो ताकि हमारा इनिशियली कॉस्ट लो रहे हर चीज में, तो हम भी फ्लैट सस्ते में बेच सके. बिकॉज अगर हर मटेरियल मैन्युफैक्चरर, हर मटेरियल वेंडर इनोवेशन लाएगा तो ही हर चीज का कॉस्ट कम होगा, अफोर्डेबल होगा. एंड आई थिंक ACP का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आया है अभी मार्केट में. बिकॉज इनफैक्ट अभी वो ज्यादा यूज होगा, ज्यादा लिफ्ट लॉबीज में यूज होगा, ज्यादा एंट्रेंस बूथ में होगा. जितने भी ओल्ड बिल्डिंग्स है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, जितने भी वॉचमैन कैबिन्स है, सबके साथ वो बूथ कनेक्ट करके, इफ सपोज कोविड के साथ जीना है हमको आगे, so you can enter the building, get sanitized, change into your PPE, whether it's an electrician, plumber or any courier person can come up to your house
taking precautions. So ये सब चीज में प्रोटोटाइप A, B, C, D डिजाइन इनफैक्ट बना के रेडी रखना चाहिए कि फोन किया या ऐप पे ऑर्डर किया, सीधा B कलर का बूथ अपने साइट पे आके लग जाता है. So I think you have to start thinking in those things because ultimately ये सब चीज बहुत जरूरत पड़ेगा. बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा कहा आपने. इसको अगर नटशेल में बात करें तो आपने 3-4 बातें एक साथ कही. पहला कि ACP मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, उन्हें उसे यूज करना चाहिए. दूसरा आपने ऐड किया यहाँ पर कि बी कस्टमर फ्रेंडली, रिड्यूस द कॉस्ट येट गिव बेटर सर्विसेज थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू एप्स एंड अदर फ्रेंडली वेज. थर्ड आपने कहा कि अगर वो मटेरियल राइट फ्रॉम डिस्पैच टू जहां पर लगना है वहां तक पूरे प्रोसेस के ट्रांसपोर्टेशन तक को भी स्मूथन करने के लिए इंडस्ट्री आगे इंश्योर करे. ये आपकी इस समय गुजारिश है, यस एडवाइस है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू सेड दैट from canopies, from colors, from builders, from residential sites, you see a big opportunity for ACP industry and they should jump in to take care of it. And from these words, I'll request Mr. Prashant Sutaria ji to add his words. Ji. Well, yes. So I think सबकी बातें अच्छी लगी और कुछ उससे पिकअप करते हुए मैं उसको, जैसे मोदी जी एक स्लोगन देते, एक स्लोगन में ट्रांसलेट करना चाहूंगा, वर्क स्मार्ट वर्क हार्ड. क्योंकि हम लोग ने बहुत आराम कर लिया, काम करते हैं घर में से, लेकिन उतना स्ट्रेस नहीं रहा हमारे पे इस दरमियान. तो हमें इस टाइम को यूटिलाइज, हम लोग ये 3-4 महीने गेन नहीं कर पाएंगे, अपनी लाइफ से चले गए. लेकिन ये साल के अंदर जो अपने पास में 8-9 महीने बचेंगे इसके बाद में, तब हम उसमें थोड़ा मेहनत ज्यादा करके ये टाइम को वहां पे प्रोडक्टिव बना सकते हैं, कहीं ना कहीं कॉम्पेंसेट करते हैं. तो उसको मैं बोलूंगा वर्क हार्ड. और दूसरा वर्क स्मार्ट. जितनी हमारी पूरी इंडस्ट्री के लोग हैं, जो स्पेशली हम ट्रेनिंग की जो बातें की हमने, अगर हम इनको अच्छे से ट्रेनिंग देने टाइम को यूटिलाइज करेंगे और इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड ऊपर लेके आएंगे, तो मुझे लगता है वी विल बी एबल टू ऐड वैल्यू टू आवर सर्विस. और जब सर्विस में वैल्यू आएगी तो नेचुरली वी विल बी पेड बैक आल्सो इन टर्म्स ऑफ मनी एंड प्रॉफिट्स. So that's what my take on this entire thing. Wonderfully said, wonderfully added. मैं सभी ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि आज की पैनल इंडस्ट्री, ACP पैनल इंडस्ट्री ने अपनी जितनी भी बातें रखी हैं उसे आप दोबारा YouTube, Facebook पे देख सकते हैं, इसे आप शेयर कर सकते हैं. It will be recorded there. There are so many questions I could not ask. I apologize to all the people who have asked questions, but I could not take it because there was lack of time. Tomorrow we will have a webinar with the Merino Managing Director Mr. Prakash Lohia and Greenlam Managing Director Mr. Saurabh Mittal. I wish all of you will join there. Next conclusion of this whole webinar is industry opportunity. Industry को इंडिया से एक अल्को बॉन्ड मिलना है, इंडिया से एक इंटरनेशनल ब्रांड मिलना है, और उसमें सभी लोग एग्री करते हैं कि यहाँ पर कोटिंग लाइन, यहाँ पर एल्युमिनियम शीट्स की मेकिंग जरूरी है चाइना की डिपेंडेंसी से छूटने के लिए. आर्किटेक्चर और डिजाइनर फ्रेटर्निटी ने ये कहा कि हम तैयार खड़े हैं, हम खुले हाथों से आपको लेंगे, लेकिन आप अपनी क्वालिटी और प्रोसेस को जरूर सुधारें. और बिल्डर कम्युनिटी ने भी कहा कि आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बशर्ते कि आप अपनी कॉस्ट को रिजनेबल रखें. ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोविड हमें खा जाएगा. कोविड है, कोविड अफेक्ट कर रहा है, लेकिन अगले 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, इसके बाद हम फिर उठ खड़े होंगे और फिर जिंदा होंगे और फिर पुराना बिजनेस उसी तरह से करेंगे. इसी आशा के साथ मुझे लगता है कि हमारी किसी भी बात का कोई भी अन्यथा नहीं लेगा, हमारे किसी भी सवाल का आप सभी पॉजिटिविटी के साथ हमें फिर और सरफेसेस मैगजीन को मौका देंगे कि हम आपके लिए दोबारा खड़े हों. थैंक यू सरफेसेस एंड थैंक यू ऑल द ऑडियंस. If anybody has anything to add, you can add on. It's now yours. Still there are so many people listening, more than 600, 700. तो आप अभी मेरी अपनी बातें टेक अवे खत्म हो चुका है. You can still chat and talk. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you I hope you everybody. all enjoyed. I hope you all enjoyed. It's amazing. Great. It was a great session. Really great. Thank you. Thank you very much all the panelists, and thank you very much. Bye. All of all, thank you. Thank you. Bye bye.